Okay, guys. So, what's up, everybody? How are you guys? So, welcome to our 26th workshop of Machine Learning 02 Hero program. So, today we're gonna perform basic text classification. Yes, which is going to be a very hectic today. So, I want you guys to be mentally prepared for today's workshop because yeah, we are going to face some troubles in that. There may be some terminologies which are going to hard to understand. So don't worry because हम लोग मशीन लर्निंग पूरी पढ़ चुके हैं. Our machine learning program is almost completed. तो अब हम जो भी कर रहे हैं वो जस्ट एक टेस्टिंग कर रहे हैं. अभी हमारे पास डिशेस पड़ी हैं लाइक डीप लर्निंग के अंदर एक डीप लर्निंग एक बास्केट हमारे पास. उसमें हमारे पास डिश है एक कंप्यूटर विजन की एक नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की एंड सम मोर थिंग. सो हम उनको सब अभी फिलहाल टेस्ट कर रहे हैं. सो इन अ टेस्टिंग वाई वी आर टेस्टिंग बिकॉज to let you know if this discipline will going to be easy for you or not, or of course not going to be easy. Next program will be way too hard than this. और next program के अंदर जितने अभी मैं फैसिलिटी देता हूँ यानी क्यों है उस वक्त बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा वो सिनेरियो बिकॉज वी वर हैविंग लेस टाइम टू डील विद such a huge algorithms like CNN, RNN, PostNet, ResNet. There are so many things in which we want to deal. क्योंकि हमारे पास कंप्यूटर विजन नहीं होगी. साथ में हम एनएलपी का भी देखेंगे डीप लर्निंग के अंदर एंड इन एडवांस एआई मास्टर क्लास. फिर हम चले जाएंगे सिग्नल एआई प्रोसेसिंग की तरफ कि सिग्नल्स को किस तरीके से प्रोसेस किया जाता है. इट कैन बी ऑडियो सिग्नल्स, इट कैन बी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स एंड देन विद दैट इंट्यूशन we will jump towards self-driving car techniques with the concepts of localization, planning, how autonomous car can be built, how these things. तो ये बहुत एडवांस होता है. तो नाउ वी आर एट अ फर्स्ट ईयर. अभी हमने फर्स्ट स्टेयर का फर्स्ट स्टेप हमने अभी पूरा किया है और हम समझते हमें एआई आती है बट दैट्स नॉट द केस. ओके, कितने सारे स्टूडेंट्स का ना एक मिसकंसेप्शन होता है दैट कंप्यूटर विजन इज वे टू हार्डर देन एनएलपी एंड एनएलपी इज वेरी इजी. बट एक्सेप्शन इज नॉट बिकॉज एनएलपी के अंदर अभी इतने कोई खास फ्रेमवर्क्स नहीं है या इतने कोई सुपर फ्रेमवर्क्स फॉर द ओपन सोर्स पब्लिक इतने अच्छे नहीं है कि आपका काम इतना ज़्यादा आसान चले एज कम्पेयर टू कंप्यूटर विजन. बट जबकि कंप्यूटर विजन इज़ वे टू ईजी आई गेस बिकॉज इट्स easy to understand. We can see that we can easily visualize, but in natural language processing it's way too hard. Even though building any project and मैं समझता हूँ natural language processing के बहुत सारे products हैं and Grammarly is one of the main famous product which is famous nowadays right now. Let me share my screen. Okay, and where is my Chrome? All right. So I'm sharing my screen. You can see on my screen as well. So first, just open this repository. I don't know why it's saying me something went wrong, but open this repository. Simply navigate to mhuzaffar dev repository. Let me copy this URL for you as well. And I've sent it into, yeah, I've sent it. All right. So what we're gonna learn today is simple, the basic text classification. You can see how long this notebook is. If you ask about my personal practice involved in natural language processing, so it's not a big much. I'm not highly experienced in natural language processing, but this kind of stuff is, of course, every AI engineer deal with. My major intuition is towards computer vision and computer vision with C++ as well. I'm just learning some more technical stuff because in self-driving techniques there are some involvement with C++ as well. So I'm just in that phase right now, which is like a 1 year or 2 year difference. In a way, if you put 8 hours per day in study, in learning, so then we are at just only 1 year difference. Otherwise, our difference is huge. Okay, let us see what is we going to perform right now. यहाँ पे एक अजीब सा टीम की तरफ से बार बना हुआ है एंड आई डोंट नो व्हाट टू डू विद दिस. ओके, ऑल राइट. सो क्या बताना चाह रहा था बेसिकली मैं आपको, यस, ग्रामरली. तो आई होपफुली नो दैट एवरीवन knows about this product. Why I am showing this example? Because this
this product actually done everything possible by Grammarly. Let me open again. Why it's app.grammarly.com. Okay, I want to open www.grammarly.com and it's opening Grammarly. Let me just go into this. Oh, still Grammarly. Remind me later. All right, all right, all right, all right. And Grammarly. Where is the home page of Grammarly? I just got towards its Grammarly and now it's not showing me up. Grammarly. Okay. Maybe I have already signed in this app, that is why it's saying me यहाँ पे अब तो वेबसाइट खोलेगा ना ये, या आई नो दैट नाउ इट्स गोइंग टू ओपन वेबसाइट बिकॉज मैंने बोल दिया है कि प्रीमियम. So this is very wonderful, you can say, application which is involved with all text classification. Now what it can do, it is enhancing your word choice. हमारे यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग वर्ड चॉइस का सिलेक्शन करना ही सबसे ज़्यादा आर्ट, बड़ा आर्ट होता है. पंक्चुएशन बहुत सारे सॉफ्टवेयर कर देते हैं, बट सिलेक्टिंग द परफेक्ट वर्ड चॉइस, स्ट्राइक द राइट ट्यून कि भाई आई थिंक वी शुड बी एबल टू की जगह उसने वी कैन कर दिया. तो ये चीज़ें, इसके लिए आपको पूरा का पूरा टेक्स्ट समझना पड़ता है. या रीफ्रेजिंग हो गई. अब आप जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स असाइनमेंट डेवलप करते हैं, दे आर हैविंग पैराग्राफ इन देयर असाइनमेंट्स, और टीचर से अवॉइड करने के लिए वो अपने कुछ 2-3 वर्ड डाल के समझते हैं कि पैराग्राफ में रिमूव हो गया होगा, बट दैट्स नॉट द केस. बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो पैराग्राफ डिटेक्ट हो रहा होता है, जिसकी वजह से there are so many vectors factors involved in that. And teacher भी आगे से ओ पैराग्राफ आ गया, नंबर काट दो उसके नाउ. So this helps you a lot to rephrase the sentences as well, because of course ये बात है, obvious सी बात है, that's a genuine reason कि वैसे अच्छी यूनिवर्सिटीज जो होती हैं उनको वो स्पेसिफिक क्वेश्चंस के अंदर ही पैराग्राफ का मार्क रखती हैं. फॉर एग्जांपल अब कहीं लिखा हुआ है डिफाइन फिजिक्स, तो अब आप फिजिक्स की डेफिनेशन, अगर 300 स्टूडेंट्स हैं तो 300 स्टूडेंट्स कैन नॉट अल्टरनेट द डिफरेंट डेफिनेशंस ऑफ फिजिक्स. सो दैट्स द डिफरेंट केस. लेकिन यहाँ फिर भी आप रिफ्रेश कर सकते हो. सो देयर आर सो मेनी थिंग्स यू कैन सी. ये एक ऑल इन वन ऐप है. आई एम नॉट प्रमोटिंग द ऐप, आई एम शोइंग इट्स क्वालिटी. ठीक है, ये हो गई हमारी एनएलपी की क्वालिटी. अब आ गया हमारे पास दूसरा गूगल असिस्टेंट, जो कि हमने काम किया था डायलॉग फ्लो पे भी. अब गूगल असिस्टेंट के अंदर दो चीज़ें इन्वॉल्व हैं. एक नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग इन्वॉल्व है और एक सिग्नल ऑडियो प्रोसेसिंग इन्वॉल्व है. नाउ बोथ आर इंटायरली डिफरेंट थिंग्स. इनको लिंक किया गया आपस में. हाउ दे एक्चुअली लिंक दोज थिंग्स टुगेदर. नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का काम होता है टू अंडरस्टैंड बिटवीन द टेक्स्ट. ठीक है, लेकिन उसका क्या काम होता है सिग्नल ऑडियो प्रोसेसिंग का, जो हम बोल रहे हैं उसको टेक्स्ट में ट्रांसफॉर्म करो. वो टेक्स्ट में ट्रांसफॉर्म करता है, उसके बाद वो एनएलपी जो होता है उसको अंडरस्टैंड कर रहा होता है. इसका सिंपल एग्जांपल है, इफ वी से एनीथिंग, सो गूगल असिस्टेंट विल टेक डबल टाइम एज कंपेयर टू इफ यू राइट समथिंग. हमने टाइप किया प्ले दिस सॉन्ग नेम ब्ला ब्ला ब्ला, सो गूगल असिस्टेंट विल टेक ओनली if it's taking 0.1 second. So if you will say it, play Billie Jean's, a very famous song, so it's gonna take 0.2 second, क्योंकि अब हमारे पास दो मॉडल काम कर रहे हैं. And that basically that architecture is of course built on C++. You can see here. Now your question might be, it's valid, why they are not using Python if we are learning it in Python. Inventions are usually focused to transform into C++. Let me see what is technique used by self-driving cars here. Self-driving cars, wait, Tesla firmware. Okay, so we can see कि वो किसमें, अच्छा नहीं बता रहा है यहाँ पे. Tesla firmware programming. ऑलराइट, अब हमारे पास स्टूडेंट्स काफ़ी आ रहे हैं, सो वी कैन कैच अप टुडेज गाइस. और अब हम अपनी वर्कशॉप स्टार्ट करते हैं. देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है C++, because inventions are only performed in the very core underlying language. So why we are learning these things in Python? Because it's easy to kickstart in the Python. To jump towards C and C++ will going to take you more than 5 to 6 years in AI. You must have spent 5 to 6 years in AI. Then you will be able enough to write code in C++. That's entirely hectic thing. ठीक है, सो दैट्स ऑल. अब चलते हैं हम अपने मेजर थिंग की तरफ. दैट इज व्हाट मेक द डिफरेंस बिटवीन द रियल. अच्छा, अब जैसे
पाइथन को पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, वो ऑलरेडी सी प्लस प्लस में लिखी हुई है, सी प्लस प्लस में लिखी हुई है. सो इट्स देयर आर सो मेनी एनकोडर्स एज वेल दैट कैन ट्रांसफॉर्म दैट पाइथन कोड इनटू सी प्लस प्लस. तो वो भी एक फिर एक सिनेरियो अच्छा हो जाता है कि आपके बना बनाया कोड जो होता है सी प्लस प्लस पर ट्रांसफॉर्म हो चुका होता है. सेम फॉर टेंसरफ्लो. हम पाइथन में जो कोड यूज कर रहे होते हैं बेसिकली वो सी प्लस प्लस पे ही काम चला हुआ है, बिकॉज टेंसरफ्लो का जो फ्रेमवर्क है वो सी प्लस प्लस पे बना हुआ है. If you talk further about different frameworks which are famous and built on the C++, तो one of this Flutter as well. Flutter भी C++ से बना हुआ है, and we work on the Dart language which is easy on our end and difficult on the engine end. So that's just an overview कि industry में क्या क्या चीज़ें involved हैं. We'll switch to our workshop, which is basic classification, and I am gonna speak today. So please open your eyes. I have stretched out my table as well. So yeah, basic text classification. So what is basic text classification? अगर आपको याद हो तो हम लोग ये पहले भी कर चुके हैं क्लस्टरिंग एल्गोरिथम के अंदर. आई गेस किस में किया था, मैंने के मींस में किया था, आई गेस यस. So what in we did that in k-means clustering, that we were creating some clusters depending on the you can say some selective words. Let me just open that algorithm, so it will be very interesting for you guys to just notice कि हम कितने try to connect the dots. हम starting day से जो end तक पढ़ते जा रहे हैं, they are interlinked with each other. This is the best outline you can have at any machine learning bootcamp. Why I'm opening this one? K-means, okay. So we created our own data set in this scenario. So I asked you to do the same for you as well. So just wait a minute here. GitHub is very sick app when you have to work a lot. It's not about my internet. My internet is working fine. It's about GitHub. All right. Even though my notebook is not so heavy, it's like 21.5 kilobytes, man. If it's not going to open, so we'll just leave it here. I must have opened these things all before, but I love to go randomly. अभी तक मैं ये नोटबुक मेरी नहीं है, ये नोटबुक वही गूगल की है और MIT से लाइसेंस्ड है. यू कैन यूज दिस बाय मेंशनिंग दिस लाइसेंस. लाइसेंस कैसे मेंशन होता है? इफ यू डबल क्लिक दिस यू कैन सी ऑल द डिटेल्स एंड यू हैव टू मेंशन इट लाइक दिस. तो इस तरीके से आप लाइसेंस मेंशन कर सकते हैं, नो वरीज. ऑलराइट, वापस बंद हो जाओ. ओके, तो ये भी गूगल की वर्कशॉप है एंड आई विल गो अलॉन्ग विद द फ्लो. आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग एट द एंड. We'll see because description बहुत अच्छी लिखी हुई है and you will be able to understand every single thing if you even not able to catch up at the end. So this tutorial demonstrates text classification starting from plain text files stored on disk. You will train a binary classifier to perform a sentiment analysis on IMDb dataset at the end of the notebook. There is an exercise for try in which okay, तो भाई ये क्या है, ये रहा है कि हमारे पास एक एंड में एक्सरसाइज है जिस पर हम वो आपके वाली होमवर्क होगा, ठीक है. उससे पहले आज हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास IMDb मूवी रेटिंग का डेटा सेट है. यू डोंट नो IMDb क्या है? IMDb एक बेसिकली अ प्लेटफॉर्म व्हिच गिव्स स्टैंडर्ड ऑफ रेटिंग ऑफ डिफरेंट मूवीज, ठीक है ना. अब आप कोई भी मूवी का नाम लिखोगे तो वहाँ पे IMDb रेटिंग जरूर आएगी. फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे लिख दो लाइक आयरन मैन, तो यहाँ पे आपके पास डायरेक्टली IMDb रेटिंग आ जाएगी. भाई इसके IMDb रेटिंग 7.9 है. इसी तरीके से आप कोई भी मूवी लिख दोगे तो उसकी आपके पास रेटिंग आ जाएंगी. नाउ दीज रेटिंग्स आर नॉट जस्ट डिपेंड ऑन दी पॉइंट्स वी आर गिविंग. दीज रेटिंग हैज इन्वॉल्व द रिव्यूज एज वेल, कि हमारा रिव्यू क्या था, नेगेटिव वे में था या पॉजिटिव व्यू में था. सो ये एक बहुत ना बेहतरीन सिनेरियो होता है. सो जस्ट लीव इट हियर, जस्ट रैंडम नेम इन माय माइंड, ड्रॉप इट. तो अब ये क्या है हमारे पास कि भाई मेरे एक मूवी आई फॉर एग्जांपल आयरन मैन, मैंने बोला भाई मुझे अच्छी नहीं लगी. फिर आई आयरन मैन 2, मैंने कहा मुझे बहुत अच्छी लगी. सो दिस इज अ बाइनरी क्लासिफिकेशन, लाइक आई एम सेइंग 1 और 0. मैं दो चीज़ों में क्लासिफाई कर सकता हूँ. आई एम नॉट हैविंग सम मल्टीपल्स एनालिसिस. So this is basically known as sentiment analysis. We are importing some libraries here. Matplotlib, OS, RE shuttle string क्यों कर रहे हैं बाद में बताऊंगा. बाकी आप लोगों को बता देता हूँ. Matplotlib for data visualization, OS for some dealing with the directories. लेयर्स हैं हमारे पास, ऑफ कोर्स लॉसेस हैं, प्री प्रोसेसिंग है, और ये टेक्स्ट वेक्टराइजेशन हमारे पास आ गया.
अगर आपको याद हो तो हमने सेकंड डे टेक्स्ट वेक्टराइजेशन किया था बाय यूजिंग scikit-learn, बट राइट नाउ वी आर यूजिंग टेक्स्ट वेक्टराइजेशन ऑफ टेंसरफ्लो व्हिच इज बिल्ट इन इनटू टेंसरफ्लो एक्सपेरिमेंटल लाइब्रेरी। देखते हैं क्या होता है वही इसके अंदर। Alright, so here is mentioned as well that we are going to perform sentiment analysis. This notebook trains our sentiment analysis model to classify movie reviews as positive or negative based on the text of the review. This is an example of binary or two-class classification, an important widely a kind of machine learning problem. You will use the large movie review dataset that contains the text of 50,000 movies reviews from the Internet Movie Dataset. These are split into 25,000 reviews for training and 25,000 reviews for testing. अब ये बोल क्या रहा है, मैं तो अंग्रेजी में पढ़ने की कोशिश नहीं करूंगा। ये सिंपली सिर्फ ये बोल रहा है कि भाई हमारे पास एक IMDb का डाटा है, उसमें हमारे पास दो कैटेगरीज हैं, दोनों इक्वली कैटेगरीज हैं या इक्वली क्लास अवेलेबल है हमारे पास, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। मतलब हमारे पास 50,000 मूवीज रिव्यूज हैं। कितने? 50,000। उस 50,000 मूवीज रिव्यूज के अंदर हमारे पास 25,000 रिव्यूज जो है टेस्टिंग के लिए और 25,000 रिव्यूज ट्रेनिंग के लिए हैं। अब आप जरा ये कहानी तो देखो जरा, यहाँ पे इन लोगों ने क्या किया, ट्रेनिंग के लिए बिल्कुल आधा बनाया और टेस्टिंग के लिए बिल्कुल आधा बनाया। इन्होंने 80 या 15 का 80-20 का रेशियो नहीं रखा है, 75-25 का रेशियो नहीं रखा, दे जस्ट पुट इट 50-50। तुम्हारे पास 25,000 का डाटा अलग है, 25,000 का डाटा अलग है फॉर टेस्टिंग एंड ट्रेनिंग। Now these data are having the equal amount of positive and negative reviews। मतलब क्या हुआ कि अगर 25,000 वैल्यूज थी हमारे पास, उसको डिवाइड कर दो 2 से, तुम्हारे पास 12,500 ही पॉजिटिव रिव्यूज होंगे और 12,500 ही नेगेटिव रिव्यूज होंगे पर सेक्शन। सो लेट्स जस्ट डाउनलोड एंड एक्सप्लोर द IMDb डेटा सेट। ये हमारे पास एक वेबसाइट है जहाँ से let me read a question. I am getting a question here. Want to do a project on autocomplete project? Would be great if you can suggest some algorithm and technique related to it. All right. Can you please approach me Discord afterward? Autocomplete project से थोड़ा मजीद elaborate me. So I'm gonna explain you guys regarding Junaid. So here I am downloading and exploring the IMDb dataset. Let's download and extract the dataset, then explore the directory structure here. तो भैया हमारे पास ये URL है। अगर आपको डाउनलोड करना हो तो सिंपली कंट्रोल दबा के यहाँ पे राइट क्लिक लेफ्ट क्लिक करोगे, द मेन क्लिक जो होता है, और ये आपको डाउनलोडिंग पे लग गया। लेकिन मुझे डाउनलोडिंग करनी ही नहीं है बिना वजह की, और ये है भी 80 MB का डाटा सेट, 80.2 मेगाबाइट, और वो भी कंप्रेस्ड होने के बाद ये टेक्स्ट डाटा सेट है इतना सारा। सो आई एम सिंपली व्हाट वी गोना डू, आई गोना कैंसिल इट बिकॉज आई डोंट नीड इट। कैंसिल हुई भी है या फिर बैकग्राउंड डाउनलोडिंग में लग गई। लेट मी कैंसिल इट। आई डोंट गोना वांट इट। या इतनी स्पीड में हो रही है, वैसे नेट इतना स्पीड में होता नहीं है कभी। ऑलराइट, कैंसिल इट। तो भाई कैंसिल कर दिया। तो ये बेसिकली हमारे पास डाटा डाउनलोड हो रहा था। आप चाहो तो डाउनलोड करके उसको अनपैक करके देख सकते हो। अब यहाँ पे हमारे पास हम पांडा से थ्रू डाटा इंपोर्ट नहीं कर रहे, हम टेंसरफ्लो की ही लाइब्रेरी से डाटा इंपोर्ट कर रहे हैं, which is टेंसरफ्लो keras.utils.get फाइल। ये keras का अपना यूजुअली वी डोंट डू दिस इन दिस प्रैक्टिस, हम पांडा से ही करते हैं, लेकिन गूगल की बनी हुई थी, गूगल वालों ने कहा भाई हमारा ही फ्रेमवर्क यूज करो, हमने कहा चलो सही है। अभी हुआ क्या है, यहाँ पे हमारे पास जो फाइल डाउनलोड हो रही थी ना, उसका नाम ये है। यहाँ पे अगर आप देखो तो उसका नाम ये है। तो हमने यहाँ पे नाम डाल दिया कि भाई गेट फाइल, कौन सी फाइल चाहिए हमको, हमें ये फाइल चाहिए। क्या URL है उसका, आपने उसका URL डाल दिया। कहाँ से आया URL आपके पास, आपने ऊपर स्टोर करा रखा था। फिर आपने बोला अनटार टू, अनटार क्या कर रहा है, आफ्टर डाउनलोडिंग द एंटायर डेटा सेट इट गोइंग टू अनटार दैट फाइल। अनटार मतलब एक होता है ना, जिप हो गया या रार हो गई, कंप्रेसिंग फॉर्मेट्स हैं, तो उसको अनकम्प्रेस कर देगा ये। तो ये इसके यहाँ पे लिखा हुआ है हमने अनटार इज इक्वल टू, डाउनलोड करने के बाद उसको अनकम्प्रेस भी कर देगा। देन वी हैव मेंशन कैश डायरेक्टरी। भाई कहाँ पे सेव कराना है आपने इसको, हमने बोला डॉट। डॉट का मतलब होता है रूट डायरेक्टरी। क्या होता है, रूट डायरेक्टरी, मतलब जहाँ पे ये फाइल मौजूद है ना बस बिल्कुल वहीं पे। तो अब रूट डायरेक्टरी का हम यहाँ पे बात करें तो ये बिल्कुल ये डायरेक्टरी है जो जहाँ पे अभी नोटबुक पड़ी हुई है या कुछ भी कह लो, ये हमारी रूट डायरेक्टरी आ गई। यहाँ पे पड़ा हुआ हमारे पास ये फाइल, डॉट लगा दिया हमने, मतलब ये नोटबुक के साथ ही है। देन कैशे सब डायरेक्टरी इज इक्वल टू स्पेस, ये सब डायरेक्टरी कौन सी होगी हमारे पास, ऑलराइट ये डाउनलोड हुआ हमारे पास, ये हमारे पास एक्सट्रैक्ट हो गया, ये हमारे पास सारी की सारी सब डायरेक्टरीज आ गई हैं। ठीक है इसकी। वेल दैट्स नॉट टू डिफिकल्ट टू मेंशन डेट, अगर आप इसको मेंशन नहीं भी करेंगे ना तभी ये आराम से एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। मैंने लंबी कर रखी है बिला वजह। लेट मी जस्ट रन दिस कोड फर्स्ट।
Okay. Acha, these codes are some of the part of the code. There is mention in the from the platform I get this file. Okay, some codes in this file are just meant to be run on TensorFlow 2.3.0 only. तो अगर आपके पास TensorFlow 2.1 या 2.2 है, so you need to upgrade your file. अच्छा, ये थोड़ा टाइम ले रहा है डाउनलोड करने के अंदर. कर लिया इसे डाउनलोड आई गेस. उसने कहा पहले से ही पड़ी हुई है मेरे पास, क्यों डाउनलोड करवा रहे हो. तो उसने शायद नहीं करी. ओके, यहाँ पे हम क्या करेंगे, os डॉट लिस्ट डायरेक्टरी डेटा सेट डायरेक्टरी यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया. अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम os के फ्रेमवर्क से यूज़ करते हुए, इस मॉड्यूल से यूज़ करते हुए ये मेथड हमारे पास लिस्ट डायरेक्टरी, हमें डायरेक्टरी डाल दी है. यहाँ पे डायरेक्टरी कौन सी डाल दी है, यहाँ पे डायरेक्टरी मैंने लिखी हुई थी os डॉट पाथ डॉट ज्वाइन. ये जो है ना आपके पास रूट रिटर्न करेगा, क्योंकि हमारे पास डाटा सेट कहाँ मौजूद था, रूट में मौजूद है. अगर आप इसको प्रिंट करके देख लो, मैं दिखा दूँ आपको आप सेटिस्फेक्शन के लिए. तो ये रूट इसने डॉट ही प्रिंट करना है. देखा यहाँ पे डॉट आ रहा है स्ट्रिंग के अंदर. लेट मी शो यू इन अ बिगर वे. तो यहाँ पे हमारे पास डॉट ही आ रहा है. इट मीन्स के हमारे पास ये डू डायरेक्टरी के अंदर ही मौजूद था. इन्होंने बस वही थोड़ा प्रोफेशनल दिखाने के लिए काम कर दिया. So here we added, we joined this ACLIMBD. ठीक है ना, हमने इसको ज्वाइन कर दिया तो हमारे पास एक परफेक्ट डायरेक्टरी बन जाएगी. किसके अंदर, डेटा सेट डायरेक्टरी. किसकी डायरेक्टरी हमारे पास आ जाएगी, हमारे पास डायरेक्टरी आ जाएगी इसकी, इस फोल्डर की डायरेक्टरी, जिसके अंदर हम जाकर देख सकते हैं. अब व्हेन यू गोना स्टार्ट एक्सप्लोरिंग दी डाटा सेट, आप देखोगे कि आपकी रैम कितनी भर जाएगी. 68 GB की रैम, ये सॉरी स्टोरेज है. 68 GB की डिस्क में से आपका तो 38 GB का डाटा ऐसे ही भरा हुआ होगा. एंड या दैट्स एब्सोल्युटली पॉसिबल. और अभी देखना कुछ थोड़ी देर में रैम भी भर जाएगी हमारी, when we gonna import the data set and do so many things. So now what we gonna do here, os.list डायरेक्टरी हमारे पास तमाम उस फोल्डर में जितने भी फोल्डर्स थे या फाइल्स थी जो भी थी, वो सब आ गया हमारे पास, आ गया. अब हमने क्या किया, इसको हमारे पास इसके अंदर ये आ गया. अब हमने बोला हमने बोला ट्रेन डायरेक्टरी इज इक्वल टू os.path.join डेटा सेट डायरेक्टरी ट्रेन. हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास सब कुछ पहले से अलग हुआ है. उसने ट्रेन की डायरेक्टरी हमें अलग से ही बनाकर दी हुई है. ठीक है, टेस्ट की डायरेक्टरी हमें अलग से ही बना के दी हुई है. ये जो इसकी डाटा सेट की नॉलेज है कुछ थोड़ी बहुत, ये वो कैब है और ये रीडमी फाइल है. ठीक है ना, इसका हमारा से कोई लेना देना है ही नहीं. हमारा लेना देना सब ट्रेन सेट और टेस्ट सेट से. तो अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे बेसिकली हम लोग ट्रेन सेट की डायरेक्टरी दे रहे हैं. हम ट्रेन सेट की डायरेक्टरी कैसे दे रहे हैं कि os.path.join डेटा सेट डायरेक्टरी. डेटा सेट डायरेक्टरी के अंदर कहाँ तक का डायरेक्टरी थी, हमारे पास यहाँ तक की डायरेक्टरी थी. हमने क्या बोला, क्या ऐड कर दो उसके अंदर, ट्रेन ऐड कर दो. तो अब हमारे पास ट्रेन का भी पूरा जो फोल्डर है ये भी हमारे पास हो गया, आ गया होगा. और उसमें जितनी भी सारी फाइल्स आ रही हैं वो सब यहाँ पे हमने लिस्ट भी कर दी. यहाँ पे हमने लिखा os.list डायरेक्टरी ट्रेन डायरेक्टरी. तो यहाँ पे हमारे पास सारी फाइल लिस्ट हो गई हैं, लेबल बोर्ड और फीड, अनसब बोर्ड और फीड. वी आर हैविंग एवरीथिंग हियर. और ये सारी चीज़ें हमारे पास यहाँ पे भी आ गई. ठीक हो गया. दिस इज हाउ वी परफॉर्म टुडेज वर्कशॉप. All right, so okay, the ACLIMBD slash train slash pause and ACLIMBD slash train slash negative directories contain many text file in each which is a single movie review. Let's take a look at one of them. पहले मैं आपको समझा दूं क्या बोल रहा है, कि हमारे पास जो फाइल्स थी कुछ बहुत सारी, जिसके अंदर हमारे पास एक फोल्डर बना हुआ था इसकी डायरेक्टरी के अंदर, एक NEG के नाम से, एक POS के नाम से. ये अनसब ना सब फालतू है मेरे ख्याल से, इनको बाद में हम देख लेंगे. तो ये मेरे ख्याल से ना सबकी रेफरेंस मेंशन हुए हैं कि कौन से रिव्यू कहाँ से उठाया गया, तो हमें उसकी ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल. ये एक NEG है और एक POS है. सॉरी, POS क्या है, POS हमारे पास वो रिव्यूज़ हैं मूवीज़ के जो हमारे पास पॉजिटिव रिव्यूज़ हैं. NEG क्या है, वो हमारे पास वो रिव्यूज़ हमारे पास नेगेटिव रिव्यूज़ हैं. मतलब हमारे पास इसके अंदर कुछ ना कुछ रिव्यूज़ होंगे और एक फाइल बेसिकली एक मूवी का रिव्यू बता रही है. अब अगर हम यहाँ पे देखें, लिखें एक सैंपल के तौर पे, सैंपल फाइल इज इक्वल टू os.path.join. यहाँ पे हमने दे दी ट्रेन डायरेक्टरी, कॉमा लिखा पॉज, मतलब क्या, पॉजिटिव स्लैश 1189_9.txt फाइल. अब आप बोलोगे भैया आपको कहाँ से दिमाग में आया कि यही नंबर है, तो भैया इसमें चेक करना मुश्किल कौन सी है. यहाँ पे जाओगे पॉज, थोड़ा टाइम लगेगा ये खुलने के अंदर, बहुत सारी फाइलें हैं इसके अंदर, 12,000 तो फाइलें होंगी. सो जस्ट वेट अ मिनट.
टू दिस, और जब खोल के दिखा देगा ना तो आप उसके अंदर जितने भी नाम आ रहे होंगे तो आप उन सबको देख सकते हो। इट्स लोडिंग, इतने सारे नाम है कि गूगल के डेटा सेंटर को लोड करने में कितना टाइम लग रहा है। सो मीन वाइल वी विल कंटिन्यू, बाद में आपको दिखा दूंगा नाम कैसे शो होते हैं यहाँ पे। सो हेयर वी आर हैविंग, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आ गया हमारे पास, ठीक है, 10,000 ये फलाना फलाना। लेट मी गो फर्दर डाउन, तो ये हमारे पास 100 करके कुछ भी है। तो हमारे पास ये जो नाम मैंने यहाँ लिखा हुआ है ये कहीं ना कहीं लाजमी होगा, तो टेंशन नहीं लीजिएगा कि यार नाम नज़र नहीं आ रहा थी आसानी से, तो ये नाम होगा लाजमी। तो ये बेसिकली हमने यहाँ से एक भी टेक्स्ट फाइल उठा लिया बाय फॉर अ सैंपल, एंड व्हाट वी गोना डू, वी गोना रन दिस। लेट्स फर्स्ट रन दिस, देन दिस, देन दिस। अब हम ये क्या कर रहे हैं, हमने ये फाइल ले ली और हमने कहा विद ओपन सैंपल फाइल एज एफ, ठीक है। ये फाइलिंग का काम हो रहा है यहाँ पे, अगर किसी ने पता फाइलिंग को जस्ट दौड़ में समझ में आ जाएगा। विद ओपन सैंपल फाइल एज एफ, हमारे पास जो भी फाइल ओपन हो रही है वो एज एफ ओपन हो रही है, एंड देन वी आर रीडिंग दिस फाइल। इस काम को हम आसानी से भी कर सकते थे कि पी डी डॉट रीड रीड अंडरस्कोर टेक्स्ट, और यहाँ पे उन फाइल का पूरा यूआरएल डाल देते हैं, एक ही बात थी, और उसको फिर व्यू कर लेते, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, किसी तरीके से भी आप व्यू कर सकते हो। यहाँ पे मैंने लिख दिया प्रिंट एफ डॉट रीड। अब यहाँ पे जब हमने व्यू करा तो हमारे पास एक पॉजिटिव मूवी का रिव्यू आ गया। क्या रिव्यू देखते हैं भाई, पढ़ते हैं इसको जरा। राशेल ग्रिफ्स राइट्स एंड डायरेक्ट दिस award winning short film, a heartwarming story about coping with grief and cherishing the memory of those we have loved and lost. Although only 15 minutes long, but Kev managed to capture so much emotion and truth onto film in the short space of time. But Tingle gives, मतलब ये बहुत बड़ा है तो पढ़ते पढ़ते बहुत देर लग जाएगी। तो ये हमारे पास एक रिव्यू आ गया, किसी बंदे ने लिखा होता रिगार्डिंग द मूवी, ये हमारे पास एक पॉजिटिव रिव्यू है, ठीक है। हमारे पास तो 5 स्टार रेटिंग वाला कंसेप्ट नहीं चल रहा अभी। ये हमारे पास एक रिव्यू आ गया है, हमें पता चल गया कि हाँ भाई अब हर सैंपल फाइल के अंदर हमारे पास कोई ना कोई रिव्यू मौजूद है। नाउ मूव फर्दर, load the dataset. Next, you will load the dataset of disk and prepare into a format suitable for training. To do so, you will use a helpful text dataset from directory utility, which expects a directory structure as follows. भाई ये स्ट्रक्चर बता रहा है, मैं बताता हूँ क्या है, फिर मुझे भी देखना दो। So to prepare a dataset for binary classification, you need to do for a corresponding to class A. Okay, all right. भाई ये कह रहे हैं कि हमारे पास एक इस सैंपल के तौर पे उन्होंने बना रखा है कि एक हमारे पास पॉजिटिव क्लास है, एक हमारे पास नेगेटिव क्लास है। क्या मतलब हुआ इस पॉजिटिव और नेगेटिव क्लास का, मतलब कि हमारे पास एक क्लास लेबल 0 होगा, एक क्लास लेबल हमारे पास 1 होगा, किस, ठीक है। अब इसके हर फोल्डर के अंदर हमारे पास मजीद टेक्स्ट फाइल है जो कि उसकी वैल्यूज है एक तरीके से, और हर टेक्स्ट फाइल जो है एक मूवी का रिव्यू रिप्रेजेंट करे, जो कि हम जिस पे हम लोग अपना मॉडल आज ट्रेन करने वाले होंगे, ठीक है। तो इस तरह का कोई सिनेरियो बनना जरूरी है। सो टू प्रिपेयर डेटा सेट फॉर, यहाँ पे हमने प्रिपेयर करना फिर डेटा सेट को फॉर बाइनरी क्लासिफिकेशन। उसके अलावा जितनी भी फाइल्स होंगी ना हमारी, हम उन सबको रिमूव कर देंगे। अब हमने लिखा हुआ है रिमूव डायरेक्टरी इज इक्वल टू os.path join ट्रेन डायरेक्टरी unsub। ओके, अगर आप यहाँ देखो, थैंक्स गॉड आई हैवंट रन दिस बिफोर, नहीं तो आप लोगों को नज़र ही नहीं आता। यहाँ पे हमारे पास एक unsub का फोल्डर बना हुआ है, एंड दे डोंट नो फॉर व्हाट दिस फोल्डर इज अवेलेबल है, ठीक है। हमें इसको रिमूव करना है, हमें इस फोल्डर को रिमूव करना है। तो किस तरीके से हम इस फोल्डर को रिमूव करेंगे, इट्स वेरी सिंपल। कि यहाँ पे आपने जिस तरीके से पॉजिटिव और नेगेटिव की डायरेक्टरी ज्वाइन की थी, आपने ट्रेन डायरेक्टरी में एक अनसब भी ज्वाइन कर दिया। नाउ वी आर हैविंग द डायरेक्टरी व्हिच वी हैव टू रिमूव। फिर हमने शेड्यूल डॉट एम ट्री लिख दिया, आर एम ट्री। उसने क्या करा, उसने पूरी वही डायरेक्टरी जो वो फोल्डर था ना, वो पूरा का पूरा रिमूव कर दिया। यहाँ पे डिटेल्स भी लिखी आ रही, रिकर्सिवली डिलीट अ डायरेक्टरी ट्री इफ इग्नोर्स एरर सेट्स एरर्स आर इग्नोर्ड, ऑलराइट। तो भाई इसने हमारे पास जो है जो अनसब का फोल्डर होगा वो हम इसने डिलीट कर देना है। लेट अस सी इन द रियल टाइम, देखते हैं कितना अच्छा डिलीट करता है ये। नाउ इट्स रनिंग, रन तो हो गया, बट व्हाई इट्स नॉट रिमूव फ्रॉम हियर। ऑलराइट, सो इफ यू सी अगेन, तो हमारे पास यहाँ से अनसब गायब हो गया, उसने वहां से फाइल डिलीट कर दी है, इट हैज बीन रिमूव्ड नाउ। सो देखा कितना अच्छा काम हुआ है। अब ये मत कहिएगा दोबारा आगे दिखाया सर, क्योंकि अब गई, अब वो फाइल दोबारा नहीं आएगी। ओके, नेक्स्ट यू विल सी द टेक्स्ट डेटा सेट फ्रॉम डायरेक्टरी यूटिलिटी
to create a label tf.data.dataset. If data tf.data is a powerful collection of tools for working with data. All right, ये एक्स्ट्रा चीज़ें लिखी हुई हैं कुछ। तो भाई वो बोल रहे हैं कि हमारे पास एक टेस्ट सेट है और एक हमारे पास ट्रेन सेट है। अब हमें अपने डेटा को ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करना है। हम ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करते हैं मशीन लर्निंग के अंदर। यहाँ पे हम डीप लर्निंग के अंदर थोड़ा अलग काम कर रहे हैं। हम यहाँ पे 3 सेट बनाते हैं। अगर हम देखा हो शुरू से हम क्या करते आ रहे हैं, हम 3 सेट बना रहे होते हैं। किस तरीके से बना रहे होते हैं? लाइक एक ट्रेन सेट में एक वैलिडेशन सेट होता है, एक ट्रेनिंग सेट होता है और एक हमारे पास टेस्ट सेट होता है। ठीक है, अब हमारे पास हमें पता है कि हमारे पास 50% टेस्ट सेट है, 50% हमारे पास ट्रेनिंग सेट है। टेस्ट सेट को आप साइड पर कर दो, दैट इज गोना यूज फॉर जनरलाइजेशन। ट्रेनिंग सेट हमारे पास है। ठीक है, अब ट्रेनिंग सेट के अंदर भी हम मजीद पार्टीशन कर देंगे, पार्टीशंस कर देंगे अबाउट 80 to 20 पार्टीशंस। और उसमें मशीन लर्निंग क्या कर रहा होगा? उसमें मशीन लर्निंग जब वो ट्रेनिंग सेट के ऊपर ट्रेन हो रहा होगा ना, तो वो अपने वैलिडेशन सेट से क्रॉस चेक कर रहा होगा। ठीक है, आप चाहो तो इसकी एक डायग्राम के थ्रू भी समझ सकते हो उसको, क्योंकि बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आती, पहले मुझे भी नहीं आती थी क्या चक्कर चल रहा है। रिलेशन सेट और टेस्ट सेट। ठीक है, तो यहाँ पे हो सकता है कोई अच्छी एग्जांपल लिखी हुई हो। या दिस इज अ वेरी ग्रेट एग्जांपल। तो ये हमारे पास सारा का सारा ओरिजिनल डाटा था। उसको एक जगह और खोल लेते हैं फॉर आवर ईज। तो ये हमारे पास सारा ओरिजिनली लेबल डाटा होता है। ये हम स्प्लिट करते हैं ट्रेनिंग सेट के अंदर और टेस्ट सेट के अंदर। ये वैलिडेशन सेट जो होता है बेसिकली ट्रेनिंग सेट के ही पार्ट हम बनाते हैं, जो कि मॉडल ट्रेन होते वक्त ही हमें चाहिए होता है। वो मॉडल ट्रेन होते वक्त वो इससे कंपेयर करके चेक कर रहा होगा कि कितना मॉडल हमारा ट्रेन हुआ। ठीक है ना, जिसको हम बोलते हैं ट्रेनिंग एक्यूरेसी। फिर देखते हैं कि और कितना जनरलाइज है, फिर हम उसके लिए अलग से ही टेस्ट सेट यूज़ कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे हमारी अपनी मर्जी का रेशियो नहीं चल रहा, यहाँ पे इनकी मर्जी का रेशियो चल रहा है। यहाँ पे टेस्ट सेट उन्होंने पूरा का पूरा 50% दे दिया। या तो ये बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे अपने मॉडल के ऊपर, या पता नहीं क्या था। So the IMDb dataset has already been divided to train and test, but it lacks a validation set. Let's create a validation by set by using 80-20 split on the training data by using the validation split argument below. भाई वही अब ये बोल रहा है कि हमारे पास टेस्ट सेट ट्रेनिंग सेट यही था, चलो अब वैलिडेशन सेट बनाते हैं। चलो बनाते हैं भाई। अब यहाँ पे इन्होंने बैच साइज दी 32। बैच साइज मालूम है ना सबको? बैच साइज क्या होता है कि जब जब ईपॉक नया बनेगा या तब जब भी वो ट्रेनिंग कर रहा होगा मॉडल, तो एट अ टाइम वो 32 सैंपल्स उठा रहा होगा। ठीक है, तो मतलब फॉर एग्जांपल हमारे पास 1 लाख सैंपल है और हमने बैच साइज 32 डाल दिया, तो वो एट टाइम फॉर अ ट्रेनिंग 32 सैंपल्स एट द सेम टाइम सेलेक्ट करेगा। दैट इज आवर बैच साइज। या मैं सीड इक्वल टू 42 दे दिया, दिस इज नोन एज रैंडम सीड। बहुत अच्छा यार टर्म है, अभी तक हमने पढ़ा नहीं है इसको डिटेल में, जरूरत नहीं पड़ रही थी अभी, बट दे हैव यूज्ड इट। सो दिस इज कॉल्ड रैंडम सीड। व्हाट इज रैंडम सीड? रैंडम सीड जनरेट्स अ रैंडम नंबर के किस तरीके से रैंडमली डाटा को उठाना है बस। लेकिन हमने यहाँ पे 42 नंबर दे दिए ना, सो इट्स रिप्रेजेंटिंग सम सॉर्ट ऑफ सीक्वेंस। वो हर दफ़ा उसी सीक्वेंस के मुताबिक रैंडम सीड करेगा और डाटा को उठाएगा, अपने पास लेगा। अगर हम यहाँ पे जैसे numpy डॉट रैंडम डाल देते हैं, तो वो हर दफ़ा बिल्कुल एक रैंडम नंबर जनरेट करेगा। लेकिन अब हमने क्योंकि सीड की वैल्यू रखती है, एक फिक्स कर दिया, सो एट व्हेन इट्स गोइंग टू चूज रैंडम डाटा, इट विल नो व्हाट डाटा टू चूज, व्हाट डाटा नॉट टू चूज। ठीक है, इसको मालूम होगा। दिस इज बेसिकली रिप्रेजेंटेड एज एन इंक्रिप्टेड की फॉर एनी सॉर्ट ऑफ सीक्वेंस। आप कोई भी डाल सकते हो, आप चाहो तो 1 2 3 भी डाल सकते हो, आप उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट मैं यहाँ पे अभी 42 ही डाल रहा हूँ जो यहाँ पे था पहले से। ठीक है, 42 ही था ना? हाँ 42 ही था। ऑलराइट, सो रॉ अब हम यहाँ पे बना रहे हैं अपनी प्री प्रोसेसिंग की लेयर। ठीक है, और प्री प्रोसेसिंग में हम क्या क्या प्री प्रोसेसिंग कर रहे हैं अभी फिलहाल? हम अभी तक वैलिडेशन सेट ही बना रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ऑलराइट, सो ओके, रॉ ट्रेन अंडरस्कोर ds, तो ये हमने नाम दिया हुआ है यहाँ पे, एंड वी आर साइनिंग व्हाट tf.keras.preprocessing.text अंडरस्कोर डेटासेट फ्रॉम डायरेक्टरी। इतना लंबा कोई तो नाम है इस मेथड का, तो भाई ये नाम देखो, याद नहीं करना, बस बता रहा हूँ क्या कर रहा है ये काम। तो यहाँ पे हमने कुछ आर्ग्यूमेंट दिए। यहाँ पे हमने आर्ग्यूमेंट दिया कि भाई हमारे पास ये ट्रेन सेट है, ये हमारे पास ट्रेन सेट आ गया। फिर हमने यहाँ पे बैच साइज दे दिया, हमारे पास बैच साइज किया, हमने दे दिया वैलिडेशन स्प्लिट किया है। अब इस 0.2 का मतलब क्या है कि हमारे पास जो 20% डाटा होगा वो वैलिडेशन के लिए काम आएगा, जो बाकी 80% डाटा होगा वो हमारे लिए ट्रेनिंग के लिए काम आएगा। ठीक है, यहाँ मैंने दे दिया सबसेट इज इक्वल टू ट्रेनिंग और सीड इज इक्वल टू सीड। अब यहाँ पे क्या हो रहा है बेसिकली, ये एक बना बनाया कोड भी आपको नेट पे मिल जाएगा। मैं आपको बता देता हूँ कर क्या रहा है। हमारे पास बेसिकली 25,000 टोटल फाइल्स थी, जिसमें बिलोंगिंग टू 2 क्लास। ये भी बता रहा है कि भाई इसमें 2 क्लासेस का डाटा था टोटल।
25,000 फाइल्स टोटल हमारे पास, जो दो मजीद फोल्डर में डिवाइडेड थी। उसके अंदर से इसने यूजिंग 2000 फाइल्स फॉर ट्रेनिंग, मतलब 80% डाटा जो है वो ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है। अब अगर आपको मालूम करना हो, सो यू कैन सिंपली डू इट कि 20,000 जो है वो 25,000 का 80% ही बनेगा। अगर यकीन नहीं आ रहा, सो यू कैन सिंपली जस्ट मल्टीप्लाई बाय 80% एंड यू कैन सी कि हमारे पास 20,000 ही आंसर आया। तो 20,000 हमारे पास सैंपल्स होंगे, वो ट्रेनिंग के यूज होंगे, बाकी 5,000 सैंपल्स होंगे हमारे पास validation set के लिए यूज होंगे। We have some sort of details here as well what we have done above. As you can see above, there are 25,000 samples in the training folder of which we can use 80% or 20,000 for training, ठीक है ना, blah blah blah। हम लोगों ने अपना validation set develop कर लिया है। Now what we gonna do now, let me see at what level we are. So we are running pretty behind, there are so many things ahead, okay। So notice the reviews content raw text with punctuation, occasional HTML tags like BR. You will show how to handle these in the following section. अब यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ पे मैं ये कह रहा हूँ कि भाई जो हमारे पास रिव्यूज थे ना, वो इंटरनेट से कॉपी हुए हुए थे या नहीं हुए हुए थे, ठीक है। अब वो कॉपी तो हुए हुए थे, लेकिन उसके अंदर एक प्रॉब्लम थी। सॉरी, इधर कॉपी तो हुए हुए थे, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम थी। क्या प्रॉब्लम थी कि उसके अंदर कई जगहों पे पंक्चुएशन थी, लाइक एक्सक्लेमेशन मार्क, कॉमा, दिस काइंड ऑफ थिंग्स, और कहीं पे टैग्स भी थे। अगर हम यहाँ पे प्रिंट करें, फॉर एग्जांपल फॉर टेक्स्ट बैच कॉमा लेवल बैच इन ड्रॉ ट्रेनिंग अंडरस्कोर डॉट ds डॉट टेक आई टेक 1, ये एक बहुत लंबा सारा सा लूप है, ठीक है। हम बेसिकली एक सैंपल जो है ना प्रिंट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमने सैंपल प्रिंट करा, हमने लिखा फॉर आई इन रेंज 3 रिव्यू लेवल। रिव्यू में हम लोग टेक्स्ट प्रिंट करेंगे और लेवल में हम लोग लेवल प्रिंट करेंगे। अब रिव्यू आया हमारे पास, ठीक है। रिव्यू में क्या लिखा हुआ है, कुछ भी लिखा हुआ मुझे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और हमारे पास उसका आ गया लेवल 0। अभी ये लेवल 0 है ना, बेसिकली ये नेगेटिव पॉजिटिव वाली कहानी है। एक मिनट, लेवल 0 कॉरस्पॉन्ड्स टू नेगेटिव, हमने आगे मालूम कर रखा है कि मैं आपको बता देता हूँ। लेवल 0 is basically representing negative and level 1 is representing positive, ठीक है। ग्रेट डॉक्यूमेंट्री अबाउट द लाइव्स, ये हमारे पास सारे कमेंट्स थे, उसके हमने हमारे पास लेवल्स भी आ गए। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, अगर आप सेंटेंस को थोड़ा एक्सप्लोर करो, एट दी एंड कितने पंक्चुएशन हमारे पास फालतू आया हुआ है। ये क्या आया हुआ है हमारे पास, ये बेसिकली एक HTML टैग है जो यूजुअली स्पेस या एंटर की जगह आ जाता है, मुझे याद नहीं किसकी जगह आता है। ब्रेक लाइन, आई गेस एंटर की जगह आता है, या एंटर की जगह ये आ रहा होता है। तो ये हमारे पास यहाँ पे ये आया हुआ है, किसी ने तो एंटर दबाया था तो अपने कमेंट के अंदर यहाँ पे BR आ गया। तो अब हमें ये नहीं चाहिए है, अदरवाइज मॉडल गोना कंफ्यूज ऑन दिस वर्ड्स, तो हमें ये रिमूव करना है। वी आर जस्ट डूइंग प्री प्रोसेसिंग इन अ डाटा सेट राइट नाउ। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, इसको बाद में देखते हैं कि इसको रिमूव करना है, लेकिन हमने अपने वर्ड्स को व्यू कर लिया। पहले हम ये जानेंगे कि हमारे पास कौन सी लेबल कौन सी क्लास रिप्रेजेंट कर रही है। हमने क्या बोला, प्रिंट लेवल 0 कॉरेस्पॉन्ड्स टू, हमने यहाँ पे क्लास नेम 0 लिख दी। अब जो लेबल हमारी जो जिसको 0 रिप्रेजेंट कर रहा है ना, वो बता देगा कि नेगेटिव है या पॉजिटिव है। यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव आ गया, एंड सेम वी आर हैविंग पॉजिटिव हियर, ठीक है। कोड बहुत मुश्किल है, बट प्लीज ट्राई टू कैच अप विद दिस। अगर आपको यहाँ तक सब समझ में आ गया ना, तो आपका मशीन लर्निंग का समझ बूट कैंप पूरा खत्म हो गया। उसके बाद आप जितना भी कुछ पढ़ रहे हो बोनस पढ़ रहे हो, हम सब कुछ पढ़ चुके हैं मशीन लर्निंग का। आई एम जस्ट मेकिंग यू रेडी फॉर डीप लर्निंग। डीप लर्निंग में हम बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं जस्ट थोड़ा भगाने की कोशिश कर रहा हूँ टू मेक यू एन ओवरव्यू। So next you will create a validation and test data set. You will use the remaining 5,000 reviews from the training set for validation. हमें पहले ही पता है कि हमारे पास 25,000 में से 20,000 डाटा हमारे पास उसका है ट्रेनिंग का, 5,000 हमारे पास वैलिडेशन का, तो हम यूज़ कर लेंगे उसको, चलो सही है। Note when using the validation splits and subset argument, make sure to either specify a random seed or to pass shuffle is equal to false so that the validation and splitting split have no overlap. ये आई है मेन चीज़, हमने रैंडम सीड डाला था। रैंडम सीड वाज बेसिकली द यू कैन से सीक्वेंस ऑफ रैंडम। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे थे कि हमने बता दिया कि वैलिडेशन स्प्लिट ये है और ये टेस्टिंग स्प्लिट ये है। हम ही चाहते हैं कोई सैंपल पहले भी जो आ चुका हो वो बाद में दोबारा आए, या ओवरलैपिंग क्रिएट हो रही हो। समझ में आई, हम ये नहीं चाहते कि ओवरलैपिंग क्रिएट हो रही हो। दैट इज व्हाई वी इधर यूज शफल इज इक्वल टू फॉल्स, यहाँ पे हम एक रैंडम सीड प्रोवाइड कर देंगे। या तो अगर वो रैंडम शफल कर रहा है तो एक उसकी स्पेसिफिक सीक्वेंस होगी, या फिर हम उसको क्या करेंगे, शफल नहीं करेंगे।
तो हम शफल कर रहे हैं बट वी आर प्रोवाइडिंग सम सॉर्ट ऑफ रैंडम सीड हियर। तो हमने यहाँ पे एक रैंडम सीड प्रोवाइड कर दिया। ये वही वाला कोड है जो ऊपर लिखा हुआ था। आई डोंट नो व्हाई वी हैव मेंशन दिस अगेन, लेकिन ये वही वाला कोड है जो ऊपर भी लिखा हुआ था। अच्छा सॉरी, दैट्स यूज फॉर वैलिडेशन। पहले हम लोगों ने ट्रेन के लिए बनाया था सबसेट, और अभी हम बना रहे हैं वैलिडेशन के लिए। अब ट्रेन के लिए बन चुका है हमारा, वैलिडेशन के लिए बन चुका है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि फाउंड 25,000 फाइल्स बिलोंग टू 2 क्लासेस, ठीक है, और यूजिंग 5,000 फाइल्स फॉर वैलिडेशन। अब उसे रैंडमली 25,000 फाइल्स से 20,000 फाइल्स रैंडमली ले ली हैं। अब जो बाकी जो 5,000 थी वो उसने यहाँ पे ले ली हैं। तो हमने बता दिया कि भाई टेक्निक लास्ट टाइम रैंडमली यही यूज़ हुई थी, तो उसने उसके हिसाब से सीडिंग ने ले ली है। नाउ रॉ टेस्ट डॉट डाटा सेट अंडरस्कोर डाटा सेट। तो हम यहाँ पे अब क्या करेंगे, हम अपना टेस्ट डाटा सेट को उठाएंगे। किस तरीके से उठाएंगे, हमने बोला ये पूरी का पूरा मेथड अप्लाई किया यहाँ पे, और यहाँ पे हमने डायरेक्ट मेंशन कर दिया भाई ACLIMBD/टेस्ट, और बैच साइज जो था हमारा वो हमने मेंशन कर दिया है। तो यहाँ बोल रहा फाउंड 25,000 फाइल्स बिलोंगिंग टू 2 क्लासेस। ऑब्वियस सी बात है, हम यहाँ पे कोई फिल्ट्रेशन नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे हम कोई कटिंग नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम डाटा को कोई रोक नहीं रहे हैं। तो जितनी फाइल्स थी उसको सब उठा ली। उसने बोला इतनी बड़ी फाइल्स हमारे पास आ गई हैं। अब यहाँ पे एक इन्होंने नोट लिखा हुआ था, प्री प्रोसेसिंग APIs यूज्ड इन द फॉलोइंग सेक्शन आर एक्सपेरिमेंटल इन टेंसर टू सब्जेक्ट टू बी चेंज। मतलब कभी भी चेंज हो सकती हैं। दीज आर नॉट दी स्टेबल API, या पहले भी एक्सपेरिमेंटल मोड में। ये इन्होंने अपनी एग्जांपल दी हुई है। दैट्स नथिंग टू डू विद यू गाइस। इनकी एक्सपेरिमेंट्स 3-3 साल तक चलता है। So prepare the dataset for training. Next, you will standardize, tokenize, vectorize the data using the helpful pre-processing or text vectorization layer. यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ, याद है हमने लास्ट टाइम एक काम किया था, हमने प्री प्रोसेसिंग की थी, हमने टेक्स्ट वेक्टराइजेशन परफॉर्म करी थी, हमने टोकनाइजेशन परफॉर्म की थी, हमने के मींस क्लस्टरिंग के अंदर टोकनाइजेशन परफॉर्म की थी, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। ये लोड नहीं हुआ, नहीं तो मैं दिखाता कसम से, ये अभी तक लोड नहीं हुआ है। ऑलराइट, हो रहा है लोड। चलो जब हो गया है। सो लेट मी शो यू। यहाँ पे हमारे पास था TF-IDF फैक्टराइजर जो हम साइकिल से यूज़ कर रहे थे। तो आप यहाँ पे भी साइकिल से यूज़ कर लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक ही बात है। लेकिन टेंसरफ्लो का फायदा इसलिए था क्योंकि आप उसके ऊपर लेयर में इम्प्लीमेंट कर सकते हो। सो हेयर वी हैव बिल्ड टोकनाइजर ऑन आवर ओन। बहुत आसान सा टोकनाइजर हमने बिल्ड किया था, ठीक है। और TF फैक्टराइजर हम साइकिल का यूज़ कर रहे थे। सेम वी आर डूइंग हेयर एज वेल, ठीक है। हम अपने कोड को स्टैंडर्डाइज करेंगे बाय यूजिंग टोकनाइजिंग एंड वेक्टराइजिंग। अब क्या होता है ये बेसिकली, टोकनाइजिंग हम हमारे सेंटेंस में से वर्ड्स को स्प्लिट कर देगा, उसकी यूजफुल फीचर को स्प्लिट कर देगा, टोकनाइज कर देगा उसको, और वेक्टराइज क्या कर रहा होगा, उसको किसी स्पेसिफिक इंटीजर में कन्वर्ट कर रहा होगा। Standardization refers to pre-processing text typically to remove punctuation और HTML। और standardize क्या कर रहा है हमारे पास, HTML के एलिमेंट्स और पंक्चुएशन को रिमूव कर रहा है। तो हमारे पास ये तीनों चीज़ें परफॉर्म हो रही हैं। तीनों चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं कि तीनों चीज़ें हमारे पास क्या क्या हो रही हैं। नाउ लेट्स सी व्हाट वी गोना डू हियर। ये आपको बाद में पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं। टू प्रिवेंट ट्रेन टेस्ट क्यू, इट्स इंपॉर्टेंट टू प्रीप्रोसेस द डाटा आइडेंटिकली टू अ ट्रेन। ऑलराइट वी ऑलरेडी नो, हम अभी यही करने जा रहे हैं। यहाँ पे हमने अपना एक कस्टम स्टैंडर्डाइजेशन एक फंक्शन बनाया है जिसमें हम कुछ डिफरेंट फंक्शन यूज़ कर रहे होंगे ऑफ कोर्स। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, हमने इनपुट डाटा हमारे पास जो भी आ रहा हो, हमने यहाँ पे एक नाम दे दिया इनपुट डाटा, ठीक है। वहाँ पे कोई डाटा आ सकता है हमारे पास इनपुट के अंदर। हमने क्या बोला, लोअर केस इज इक्वल टू TF डॉट स्ट्रिंग डॉट लोअर इनपुट डाटा। जो भी डाटा हमारे पास आ रहा होगा ना, वो लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएगा, ताकि मशीन लर्निंग का ये ना समझे कि अपर केस इज डिफरेंट और लोअर केस इज डिफरेंट। हमारे पास सारा का सारा डाटा लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ you may have a very wonderful question, why we are using string dot lower case from TensorFlow, जबकि पाइथन के अपने स्ट्रिंग मेथड्स भी हैं। Yes, I know, I believe this is Google's notebook, not mine. All right. Okay, stripped HTML is equal to TF dot strings dot regex replace lower case. All right. भाई यहाँ पे क्या हो रहा है हमारे पास, कि हमारे पास सिंपल कुछ नहीं हो रहा। हमारे पास जो स्ट्रिंग लोअर केस में कन्वर्ट हुआ था, अब हमारे पास सारे के सारे वर्ड्स लोअर केस में कन्वर्ट हो गए हैं। अब वो इधर आ जाएंगे सारे के सारे वर्ड्स, ठीक है। अब वो सारे वर्ड्स में हमारे पास क्या होगा कि जहाँ जहाँ हमारे पास ये की एलिमेंट आ रहा है ना, अंडरस्कोर BR स्पेस स्लैश और क्लोजिंग टैग, जो हमारे पास पूरा एक HTML टैग है, उसकी जगह ही क्या कर देगा, एक स्पेस प्रिंट कर देगा। सिंपली एक स्पेस हमारे पास यहाँ, ये सिर्फ एक स्पेस है और ये प्रिंट हो जाएगा। यस, तो बेसिकली स्पेस की जगह स्पेस ही आना चाहिए, कि एलिमेंट नहीं आना चाहिए, तो हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया।
Then what we're gonna do? We're gonna return tf.strings.regex replace stripped HTML. अब हमारे पास एक HTML ऑलरेडी जो है स्प्लिट हो चुका है। अब हम क्या कर रहे हैं, उसको रिटर्न कर रहे हैं। हम सारा काम परफॉर्म कर लिया, वो फंक्शन वापसी वही स्ट्रिंग को साफ करके रिटर्न कर रहा है। हमने बोला कि स्ट्रिप्ड HTML, बस हमने एक चीज़ मेंशन कर दी है कि जहाँ जहाँ हमारे पास ये आ रहा हो, ये टैग आ रहा हो, सॉरी ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो है परसेंट स्ट्रिंग, ठीक है, उसको हम क्या कर दें, एक मिनट मुझे देखने दो। ऑलरेडी यहाँ पे हम कुछ नहीं कर रहे, सॉरी सॉरी फॉर दैट। यहाँ पे जहाँ जहाँ हमारे पास पंक्चुएशन आ रही होंगी, हम बेसिकली उन पंक्चुएशन को रिमूव कर रहे हैं। अब वो पंक्चुएशन स्ट्रिंग के अंदर कोई भी हो सकती है, उन पंक्चुएशन को हम रिमूव कर रहे हैं किससे, स्पेस से रिप्लेस कर रहे हैं। ठीक है, ये स्पेस है या नहीं है देख लूँ, मिनट में सी, यहाँ स्पेस भी नहीं दिया हुआ है, बस पंक्चुएशन बिल्कुल खत्म, मतलब उस पंक्चुएशन की जगह कुछ भी नहीं आ रहा, वो वहाँ पे जगह खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लोगों ने पंक्चुएशन भी रिमूव कर दी है, की एलिमेंट्स भी रिमूव कर दिए हैं, और लोअर केस में भी कन्वर्ट कर दिया। अब हमारा जो इनपुट डाटा है वो स्टैंडर्डाइज हो जाएगा बाय यूजिंग दिस फंक्शन। नेक्स्ट यू विल क्रिएट अ टेक्स्ट वेक्टराइजेशन लेयर। अब वो कैसे होगी हमारे पास, टेक्स्ट वेक्टराइजेशन में हम क्या करते हैं, हम टेक्स्ट को वेक्टराइज कर रहे होते हैं। वी हैव डन दिस इन अ सेकंड वर्कशॉप एज वेल, डेटा प्रीप्रोसेसिंग। मैक्स फीचर इज इक्वल टू 10,000, सीक्वेंस लेंथ 250। हमने यहाँ पे प्री फीचर की लेंथ 10,000 है और सीक्वेंस हमारे पास 250 है। देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। वेक्टराइज लेयर इज इक्वल टू टेक्स्ट वेक्टराइजेशन, स्टैंडर्डाइज इज इक्वल टू कस्टम स्टैंडर्डाइजेशन। अभी यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम बता रहे हैं टेक्स्ट वेक्टराइजेशन को कि हम कौन सा फंक्शन यूज कर रहे हैं फॉर स्टैंडर्डाइजिंग अ डेटा। ठीक है, हमें ये अलग से यूज नहीं करना पड़ेगा, फिर ये वेक्टराइज लेयर खुद ही इसको स्टैंडर्डाइज करके आपको रिटर्न करेगा, स्टैंडर्डाइज भी कर देगा और अपना काम भी कर देगा। तो हमने बता दिया कि भी स्टैंडर्डाइज के लिए हम लोग ये वाला फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं, हमने उसको बोल दिया अब ये इसको सारे डेटा को स्टैंडर्डाइज भी करेगा। देन वी हैव मेंशन मैक्स टोकन को हमारे पास कितने चाहिए, जितने हमारे पास मैक्स फीचर्स हैं, कि मतलब मैक्सिमम हमारे पास इतने ही फीचर होने चाहिए, ज़्यादा फीचर्स नहीं होने चाहिए। अब ये नंबर कहाँ से आ रहा है, ये डेटा सेट की डिटेल्स में लिखा हुआ होगा कि हमारे पास मैक्स फीचर कितने हैं इन और वर्डिंग्स। तो ये हमारे पास उसके हिसाब से ये आ गया है। सीक्वेंस लेंथ मतलब 250 करेक्टर्स का मैक्सिमम कमेंट हो सकता है, तो ये हमारे पास उसकी सीक्वेंस लेंथ आ गई है। ठीक है, आउटपुट मोड क्या होगा हमारा, इंटीजर में होगा। हम किस में वेक्टराइज करना चाह रहे हैं, इंटीजर में, नॉट इनर फ्लोट। तो ये सब चीज़ देखनी पड़ती हैं। आउटपुट सीक्वेंस लेंथ क्या हमारी, सीक्वेंस लेंथ हमारी एट अ टाइम टू, इसके हिसाब से जो हमारी सीक्वेंस लेंथ है इसके हिसाब से हमारे पास इंटीजर डेवलप हो रहे हो, तो ये हमें सारी चीज़ें उसको बतानी पड़ती हैं, ये उसके हिसाब से ही ना फिर टेक्स्ट वेक्टराइजेशन का परफॉर्म करता है। हमने उसको बता दिया कि हमारे पास 10,000 फीचर्स हैं या 10,000 डिफरेंट वर्ड्स होंगे हमारे पास, तो ये हर वर्ड को एक डिफरेंट नंबर ना आइडेंटिफाई करेगा। हमारे पास 250 सीक्वेंस लेंथ है, मतलब हर टाइम 250 करेक्टर्स हैं आई गेस। तो उन मतलब हर करेक्टर के लिए या आउटपुट जनरेट करने के लिए उसकी एक लेंथ उसको मालूम होनी चाहिए। सो वी आर जस्ट एंटरिंग और पासिंग दोज टाइप ऑफ पैरामीटर्स हियर। लेट मी सी इज देयर एनी क्वेश्चन। All right. Yes, Ayan shuttle is for removing. I just read your question very late. Ayan asked at very lesser time कि वैलिडेशन के लिए डेटा कहाँ से आएगा जब 50-50 टेस्ट ट्रेन टेस्ट को दे दिए हैं। तो जो 50% डेटा सेट हमने ट्रेनिंग को दिया है उसके अंदर से 20% मजीद हम लोग वैलिडेशन के लिए निकाल रहे हैं। इफ़ यू रिमेंबर व्हाट आई सेड, BR फॉर नेक्स्ट लाइन, यस आई नो BR इज फॉर नेक्स्ट लाइन। यूजुअली जब आपके पास एंटर भी होता है ना HTML के अंदर, और जब आप उसको कॉपी करके एक ऐसी फाइल में कॉपी करो जो कि UTF-8 स्टैंडर्ड की हो, जिसका बिट रेट UTF-16 ना हो, तो वहाँ पे उसकी जगह एलिमेंट किया जाता है लिखा हुआ। ठीक है, जैसे ये हमारे पास एज अ काइंड ऑफ BR काम कर सकता है। यहाँ पे तो खैर नहीं, कहीं पे अगर वेबसाइट के ऊपर, तो जब आप अपना टेक्स्ट क्रिएट कर अपना वो क्रिएट करोगे ना डाटा सेट, तब आएगा आपके पास, डोंट वरी। नोट पैड पे लिखा हुआ नहीं आ रहा होगा, लेकिन वैसे आप जब प्रिंट करोगे यहाँ पे अपनी फाइल पे तब आ रहा होगा पाइथन पे। ऑल राइट, सो क्योंकि वो इनकोडिंग इश्यूज होते हैं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे अब, ओके हमने सारा काम कर लिया, यहाँ पे टेक्स्ट वेक्टराइजेशन परफॉर्म कर लिया है। टेक्स्ट वेक्टराइजेशन का भी लेयर बनाई है हमने, एक लेयर डेवलप की टेक्स्ट वेक्टराइजेशन की। Now make a text only data set without labels, then call adopt. ओके अब हम क्या कर रहे हैं, हम एक टेक्स्ट ओनली डेटा सेट डेवलप कर रहे हैं जिसमें हमारे पास कोई लेबल्स नहीं है। ठीक है, और फिर हम क्या कर देंगे, उस पर अडॉप्ट लगा देंगे। मतलब क्या करेंगे, हम अप्लाई कर देंगे किसी भी मतलब ट्रेन टेस्ट के ऊपर, जो भी आप कहना चाहो। तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है सिंपली एक एक वो बना दिया है
ट्रेन टेक्स्ट इज इक्वल टू रॉ ट्रेन अंडरस्कोर ds डॉट मैप, और हमने यहाँ पे लैम्डा का फंक्शन लगा दिया। ठीक है, हम यहाँ क्या कर रहे हैं कि भाई लैम्डा ऑन ईच एक्स एंड वाई इज इक्वल टू एक्स, तो हमारे पास से एक तरीके से ना वाई बेसिकली रिमूव हो रहा है, एज फार आई एम गेटिंग इट। यस, हमारे पास वाई रिमूव हो रहा है, हमारे पास सब ट्रेन टेक्स्ट आ रहा है, जो मतलब हमारे पास सब एक्स है। ठीक है, हमारे पास सब यही कहानी हो रही है, यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा। लेट्स क्रिएट अ फंक्शन। अब यहाँ पे हमारे पास जब हमने वेक्टराइज लेयर बनाई थी ना, तो हमने यहाँ पे अडॉप्ट कर दिए वेक्टराइज लेयर डॉट अडॉप्ट ट्रेन टेक्स्ट, हमने इस पे ये अप्लाई कर चुके हैं। So, all right. So it's important to only use the training data when calling adopt. Using the test set would leak information. ये हुई ना बात कि ये एक ये होता है सिक्योरिटी मतलब पैरामीटर कि आप क्या कर रहे हो कि अगर आपने टेस्ट सेट को भी यूज कर दिया साथ, तो इट विल बी लाइक यू आर लीकिंग एन इन्फॉर्मेशन टू इट, आपकी इन्फॉर्मेशन लीक हो रही है कि मशीन लर्निंग को पहले ही पता चल सकता है कि आप आगे जाके कौन सा मॉडल टेस्ट सेट में कौन से वेरिएबल्स हमारे पास आ सकते हैं। Let's create a function to see the results of using this layer to pre-process some data. All right. Def vectorize text label or text is equal to tf or expand dimensions. All right. Return dot vectorize layer. All right. सब समझ में आ गया, ये काम अब आ गया हम थोड़े से लंबे काम के अंदर। सबसे कॉम्प्लेक्स काम ना मुझे यही लगता है, मुझे भी यही लगता है, बिकॉज दिस इज द थिंग विच ऑफन आई फॉरगेट। मुझे याद भी नहीं रहती कि हमने कैसे किया था, मुझे देखना पड़ता है हर दफ़ा, क्योंकि मैं इतना परफॉर्म नहीं करता हूँ ऑफ कोर्स। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमें डायमेंशन के साथ डील करना है। इमेज प्रोसेसिंग में भी जैसे हम डायमेंशन के साथ डील करते हैं, यहाँ पे भी हम डायमेंशन के साथ डील कर रहे हैं। हम लोग एक डायमेंशन रिड्यूस कर रहे हैं बेसिकली यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ एक्सपेंड डायमेंशन है, लेकिन हम बेसिकली यहाँ पे एक डायमेंशन रिटर्न्स टेंसर द लेंथ ओके और राइट, यहाँ पूरी की पूरी इन्होंने लिखा हुआ है इट्स जीरो बेस्ड, अ नेगेटिव इंडेक्स इज काउंटेड बैकवर्ड फ्रॉम द एंड। ऑल राइट, तो हम यहाँ पे हमने डायमेंशन के सारा हम डायमेंशन से हमने डील कर लिया है, और हमने फिर उसी को रिटर्न कर लिया है। अभी तक हमने सब इसके ऊपर ही अप्लाई किया था, ठीक है, और अभी तक हम इसको लेके चल रहे हैं। अब यहाँ पे हमारे पास वेक्टराइज टेक्स्ट का हमने वो बनाया, हमने हालांकि ऊपर जो बनाया था वो किसका बनाया था, वेक्टराइज लेयर, एक लेयर बनाई थी। अब हम वेक्टराइज टेक्स्ट का बना रहे हैं, जिसके अंदर हम वही वेक्टराइज लेयर का फंक्शन यूज कर रहे हैं, वो हमें उसके बाद वो हमें एक लेबल रिप्रेजेंट कर रहा होगा, और उसके बाद वो हमें वेक्टराइज लेयर जो है रिप्रेजेंट कर रहा होगा। अब ये काम हमने क्यों किया, बेसिकली ये काम हमने इसलिए किया ताकि हमारे पास जो भी टेक्स्ट आ रहा हो उसमें से एक डायमेंशन रिड्यूस हो जाएगी, तो हमारे पास सिर्फ एक एक्स ही आ रहा होगा। हमारे पास एक डायमेंशन रिड्यूस हो गई, हमारे पास अब एक डायमेंशन यहाँ पे आ रही होगी, एंड नाउ वी आर हैविंग हियर वेक्टराइज लेयर। तो अब उस एक डायरेक्शन में हमें ट्रेन करना है, एंड लेवल जो हमें सेपरेटली रखनी है यहाँ पे। अब हमारा काम शुरू होगा रियल प्री प्रोसेसिंग का, और उसके बाद भी अच्छी खासी चीज़ें हैं मॉडल क्रिएट करने से पहले, मॉडल क्रिएट करने तक अलग ही काम होगा। सो रिट्रीव अ बैच ऑफ 32 रिव्यूज एंड लेबल्स फ्रॉम द डेटा सेट, टेक्स्ट बैच कॉमा लेबल बैच इज इक्वल टू नेक्स्ट आइट्रेट, ये इनके सारे बिल्ट इन फंक्शंस हैं। ठीक है ना, अभी क्या कर रहे हैं मैं आपको बता देता हूँ। हमने यहाँ डाल दिया रॉ ट्रेन ds। अगर आपको चेक करना हो ना, कभी भी आपको मैंने बताया, कभी भी आपको चेक करना हो कि ये क्या रिटर्न करेगा, सिंपली गो टू अनदर सेल और यहाँ पे लिख के चेक कर लिया करो, आपको पता चल जाएगा यहाँ पे वो क्या करने वाला है। जब हमने ये प्रिंट करा ना, तो यहाँ पे हमारे पास जितने भी उसके वो थे क्या कह सकते हैं कमेंट्स थे या वर्ड्स थे डिफरेंट, सारे हमारे पास आ रहे हैं, और उसके वो टेंसर शेप दे दी थी 32। अब ये 32 क्यों आ रहे हैं, हमारे पास तो बहुत सारे थे, बिकॉज हमने अपना बैच साइज किया दिया था, हमने अपना बैच साइज 32 दिया था। तो एट अ टाइम वो 32 ही रिव्यूज देखेगा और 32 ही लेवल्स देखेगा। हमारे पास ये सारे स्ट्रिंग्स आ गए यहाँ पे मौजूद, ठीक है ना, ये एरे के अंदर, और हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया 0111000101 जो भी है, हमारे पास उसके लेवल्स भी आ गए। तो ये बेसिकली हर उस पर जा रहा है ट्रेशन पे, और हमें 32 डेट सैंपल्स का बैच रिटर्न कर रहा है। All right, just delete this because you already understand that. Okay. First review, comma first label, text batch 0. Okay. अब ये यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कि हम उसने पूरा का पूरा उसका आइडेंटिटी नंबर दे दिया है, हमने इसका सॉरी इंडेक्स नंबर दे दिया है कि भाई जो फर्स्ट बैच है हमारा और फर्स्ट लेवल बैच है, उसी को ही आपने जो है ना रिटर्न करना है किसमें, फर्स्ट रिव्यू के अंदर और फर्स्ट लेवल के अंदर। अभी हम चेक कर रहे हैं बेसिकली जो हमने फंक्शन बनाया है वो सही काम कर रहे हैं नहीं कर रहे। लिखते हैं, हमने लिखा प्रिंट रिव्यू कोमा फर्स्ट रिव्यू।
अब यहाँ पे फर्स्ट रिव्यू जो है ना, हमारा फर्स्ट रिव्यू प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे TF तो टेंसर में आया। अभी आप यहाँ पे एक चीज देख रहे हो कि यहाँ पे अब एरर नहीं लिखा आ रहा, जो सेंटेंस है वो टेंसर बेस्ड है बेसिकली। ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको कहा था दैट दे कैन बी रिप्रेजेंटेड एज एरे एज वेल, टेंसर्स आर द थिंग्स। तो यहाँ पे हमारे पास सेंटेंस लिखा आ रहा है, साइलेंट नाइट डेडली नाइट 5 इज द वेरी लास्ट ऑफ द सीरीज एंड लाइक पार्ट 4। तो ये हमारे पास कुछ चीजें थी जो हमारे पास एक्चुअल सेंटेंस था, जो हमारे पास विद पंक्चुएशंस लिखा आ रहा है। हमने क्या किया, हमने उसका लेबल प्रिंट कर दिया। लेबल क्या, हमारे पास रॉ ट्रेन डॉट ds डॉट क्लास नेम, और जो फर्स्ट लेबल थी हमने वो डाल दी। तो अब हमारे पास उसका लेबल भी आ जाएगा। लेबल क्या आ रहा है, नेगेटिव, ठीक है, हमारे पास ये नेगेटिव कमेंट में से आया। अब वेक्टराइज्ड रिव्यू अगर हम देखें तो किस तरीके से बनेगा, हमने वो वेक्टराइज्ड टेक्स्ट का फंक्शन कॉल करा, हमने उसको फर्स्ट रिव्यू डाला और फर्स्ट लेबल डाल दिया। जब हमने उसको फर्स्ट लेबल डाल दिया, अब जितने भी वर्ड्स थे ना उसने सबको इंडेक्स कर दिया। दिस इज नोन एज इंडेक्सिंग। क्या कहलाता है ये, इंडेक्सिंग। हम बोलते हैं कि यार गूगल ने पढ़े तमाम डेटा को इंडेक्स कर दिया। क्या मतलब होता है इसका, वेबसाइट पे पढ़े जितने भी वर्ड्स थे उसको वो इंडेक्स कर चुका है, वो नंबर में कन्वर्ट कर चुका है, ताकि वो AI के लिए ट्रेनेबल हो सके। गूगल के पास जितनी भी ऑडियोज पड़ी थी यूट्यूब पर, उसने उस सबको इंडेक्स कर दिया ताकि उसका जो सर्च इंजन है या गूगल असिस्टेंट है वो और एडवांस हो सके। द इंडेक्सिंग इज नोन एज vectorization, you can say, yeah, transforming any sort of data type into an integer data type for trainable into AI. This is known as indexing. This is a technical terminology. तो अगर हम यहाँ देखें, हमारे पास बहुत सारे वर्ड्स हैं, तो अगर आपको चेक करना हो कि कौन सा नंबर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम वो भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे, लेट अस सी, ये एक वर्ड ले लेते हैं हम साइलेंट, और एक वर्ड ले लेते हैं हम नाइट, ठीक है। कहाँ कहाँ आएंगे ये, एक 1287 इससे साइलेंट को दिया है 1287, और आई गेस नाइट को दिया है इसने 313, ठीक है। हम इसको चेक करते हैं या। तो अभी हम क्या करेंगे, वेक्टराइज लेयर डॉट गेट वोकैबुलरी। ये गेट वोकैबुलरी क्या करता है, जिस तरीके से हमने उसको वेक्टराइज कर रखा था ना, अब गेट वोकैबुलरी उसी को हटो अब गेट वोकैबुलरी क्या करेगा, उसी को ही कन्वर्ट कर देगा किसके अंदर, जो हमारे पास नंबर्स होंगे या जो हमारे पास डाटा होगा वेक्टराइज फॉर्मेट के अंदर, उसको किस पर कन्वर्ट कर रहा होगा, उस वर्ड के अंदर जो उसने बनाया है, जिस वर्ड को ट्रांसफॉर्म किसने किया था। तो हमने यहाँ पर 1287 और 313 डाल दिया। जब इसे ट्रांसफॉर्म किया उसको और हमने प्रिंट करके देखा, तो 1287 प्रिंट कर रहा है साइलेंट को और 313 प्रिंट कर रहा है नाइट को। इफ यू सी दिस इन अबव सिनेरियो, दैट वाज द एक्चुअल थिंग वी हैव सॉन अबव, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास कॉमा भी था, हमारे पास यहाँ पे कैपिटल केस में भी था, बट वेक्टराइज इज ऑलवेज कन्वर्टिंग योर वर्ड इनटू लोअर केस, ठीक है ना। अब इसको ये नहीं पता चलेगा कि ये कैपिटल में था या नहीं था, ये इसका काम नहीं है, बट इट यू आर गेटिंग द वर्ड के वर्ड कौन सा था हमारे पास। और वोकैबुलरी का साइज 10,000 बता रहा है कि वोकैबुलरी का साइज क्या हमारे पास, तो हमने देख लिया वोकैबुलरी साइज डॉट फॉर्मेट लेन वेक्टराइज लेयर डॉट गेट वोकैबुलरी, तो हमारे पास उसकी लेंथ आ गई है। तो हमारे पास लेंथ क्या है, 10,000 है, जो कि हमने ऊपर खुद ही दी थी कि भाई 10,000 हमारे पास टोटल वर्ड्स हैं, टोटल कम्बिनेशन ऑफ 10,000 वर्ड्स, ये हमारे पास सारे गिवन थे IMDb डेटा सेट के अंदर, ठीक है। Alright, so now you are nearly ready to train your model. As a final pre-processing step, you will apply the text vectorization layer you created earlier to train the validation and test data set. अब ये हमने किया था एक सिंपल एक एलिमेंट के ऊपर या एक बैच के ऊपर। अब हम करेंगे ये तमाम चीज़ें पूरे के पूरे उसके अंदर न्यूरल नेटवर्क के अंदर। मीन वाइल लेट मी सी एनी क्वेरीज इफ यू आर हैविंग एनी वैलिड क्वेरी। ऑलराइट, yes, Masood Khan, we can surely use stemming and lemmatization after we clean up the data, of course. All right. Okay, wait, let me reply. He has said the very thing, let me said yes. All right. So purpose क्या, किस चीज़ का purpose? हाँ यार, हर बार जब भी हम रन करेंगे तो हमारे पास डिफरेंट बैच ही आ रहा होगा इन आवर न्यूरल नेटवर्क्स। वी वांट टू बी मोर स्पेसिफिक। ऑलराइट, सो हियर व्हाट वी गोना डू, वी आर नियरली रेडी टू ट्रेन आवर मॉडल। अब हमने ट्रेन डेटा सेट बना दिया, हमने वैलिडेशन डेटा सेट बना दिया, डेटा सेट बना दिया। कैसे बना दिया हमने सिंपल रॉ ट्रेन अंडरस्कोर ds को मैप कर दिया किसके थ्रू, वेक्टराइज्ड टेक्स्ट
उस तमाम डेटा सेट के ऊपर हमारे पास वेक्टराइज्ड टेक्स्ट का फंक्शन अप्लाई हो जाएगा बाय यूजिंग डॉट मैप। हर वैल्यू पे जाके मैप होगा। ठीक हो गया। अब ये हमारे पास चाहे वैलिडेशन सेट हो या ट्रेनिंग सेट हो या हमारे पास टेस्ट सेट हो, हमारे पास ये सारा का सारा वेक्टराइज हो चुका है। इवन फॉर द प्रिडिक्शन वी मे नीड दिस काइंड ऑफ वेक्टराइजेशन एज वेल। नाउ कॉन्फ़िगर द डेटा सेट फॉर परफॉर्मेंस। यहाँ हमारे पास ऑटो ट्यून, इसका अपने कुछ फंक्शन है, उसको पढ़ लेते हैं क्या कह रहे हैं ये। These are two important methods you should use when you're loading the data to make sure that I/O does not become blocking. Okay, dot cache keep data in memory after its load of disk. This will ensure that data does not become a bottleneck while you're training a model. If your data is too large to fit into a memory, you can use this method to create a performant on disk cache, which is more efficient to read than many small files. प्री फैच ओवरलैप बेटा। अच्छा, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर आपके पास रैम कम होगी ना फॉर एग्जांपल, और आपने डाटा को इंपोर्ट कर लिया अपने पास, या कैशे में आपके पास सारी चीज़ें आ गई और आपका रैम उसको हैंडल नहीं कर सका वाइल ट्रेनिंग, तो इट विल स्टार्ट टू गेट बोटलनेक योर सिस्टम। व्हाट इज बोटलनेकिंग अगर आपको मालूम हो, जैसे हमने देखा होगा गेमिंग के अंदर हम बोलते हैं, गेमिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ आपको, जल्दी समझ में आ जाएगा एग्जांपल के साथ, कि भाई मैं Pentium 4 यूज़ कर रहा हूँ एंड आई हैव पुट RTX 2080 Ti विद दैट Pentium 4 माई सिस्टम, बट मेरा ग्राफिक कार्ड यूटिलाइज ही नहीं होगा क्योंकि मेरा प्रोसेसर 100% पे टिका हुआ है। बिल्कुल वो फुल 100% पे है, वो उसकी इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो इतनी अच्छी तरीके से रन करे, तो हमारा जो GPU है वो भी यूज़ नहीं हो रहा होगा, वो आइडल बैठा हुआ होगा। अगर हम यहाँ पे यूज़ कर दें Core i9 10th जनरेशन ओवरक्लॉक प्रोसेसर विद अ ग्राफिक कार्ड हमारा है फॉर एग्जांपल GT 730, बहुत ही कोई पुराना और छोटा सा कार्ड, $10-20 कार्ड जो होता है हमारे पास, $10 या $20 का कार्ड है आई गेस, वो कार्ड हमने यूज़ कर दिया। अब क्या होगा कि प्रोसेसर का अपना ही GPU इतना अच्छा था, हमने तब बेकार GPU लगा दिया, तो हमारे पास GPU क्या होगा, अब GPU बॉटल नेक कर जाएगा, बल्कि प्रोसेसर क्या होगा, प्रोसेसर अपना काम नहीं कर पाएगा उस एफिशिएंसी के साथ। दिस इज नोन एज बॉटल नेकिंग। अब इस चीज़ को, इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने का सोचें कि इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे डाटा था, अगर हमारी रैम फुल भर गई, मॉडल कहाँ ट्रेन होगा। कॉमन सेंस की बात है कि क्योंकि हमारे पास रैम के अंदर सारी जगह होती है जहाँ हमारे पास मॉडल की कैलकुलेशन परफॉर्म हो रही होती हैं। कैलकुलेशन परफॉर्म करने वाला GPU या प्रोसेसर है ऑफ कोर्स, लेकिन जगह रैम के अंदर होती है। अब अगर हम GPU यूज़ कर रहे हैं इन दैट सिनेरियो, हमारे पास GPU है, तो हमारे पास जगह कौन सी काउंट होगी, जो हमारी GPU की है। और आपको पता होगा कि GPU की जगह थोड़ी कम होती है ऑफ कोर्स। GPU की जगह हमारे पास लाइक 2 GB 4 GB इस तरह की है, फिर बहुत रेयर किसी के पास 8 GB का ग्राफिक कार्ड या 6 GB का ग्राफिक कार्ड मौजूद होता है, तो वो फिर हमारे पास उन सिनेरियो के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती हैं। तो वो क्या करता है, उसको वो ऑटो ट्यूनिंग परफॉर्म कर रहा होता है कि हमारे पास जैसे GPU की मेमोरी भर जाएगी ना, वो उसको ले आएगा पहले अपनी प्राइमरी रैम के अंदर, बकिया डेटा को हमारे पास कहाँ ले आएगा, अपनी लोकल रैम के अंदर, वहाँ पे स्टोर करा देगा। और अगर वो भी इनकेस ऐसा हुआ कि वो अपनी हद से ज़्यादा जगह लेने लग गया और रैम हमारी ऑलमोस्ट फुल हो गई और ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा हैंग हो रहा है, तो फिर वो काम करेगा हमारी लोकल प्राइमरी डिस्क के ऊपर। तुम्हारी जो कैशे होगी, फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर हैविंग SSD और हार्ड ड्राइव, तो हमारी कैशे सारी की सारी वहाँ पे स्टोर हो रही होगी और एक डायनामिक कैशे डेवलप हो जाएगी वहाँ पे, जिस पे सारा हमारा काम हो रहा होगा। दैट विल गोना मेक योर सिस्टम लिटिल बिट स्लो ऑफ कोर्स, क्योंकि हार्ड ड्राइव के अंदर या SSD के अंदर राइटिंग स्पीड बहुत बहुत स्लो होती है एज कम्पेयर टू रैम वी आर हैविंग, एंड स्पेशली द रैम ऑफ आवर GPU। तो वहाँ पे काम स्लो हो जाता है, लेकिन काम आपका रुकता नहीं है। फॉर दैट यू नीड टू ऑटो ट्यून योर मॉडल, क्योंकि इन्होंने इसलिए भी कर रखा बिकॉज इनकी खुद की रैम बहुत कम है, 12 GB रैम है। दैट इज व्हाई आई गेस दे हैव मेंशन दिस। ओके, ऑटो ट्यून इज इक्वल टू tf.data.experimental.autotune हमने यहाँ लगा दिए, ठीक है। और हमने सब पे बफर साइज जो है ना ऑटो ट्यून कर दिया कि वो बफर साइज होगा। अगर आप लोगों ने ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में कभी पढ़ा हो ना गौर से, तो आप लोग ये समझ चुके होंगे अब तक मेरी तमाम बातों के अंदर कि व्हाट इज बफर साइज, किस तरीके से ट्यून हो रहा है। तो ये अभी बहुत अलग से टॉपिक चला जाएगा, मैं वो भी समझाना नहीं चाह रहा। सो दिस इज हाउ इट्स वर्किंग। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हमें हर दफ़ा जो बफर साइज अलग से अलॉट हो रहा होता है, वो पहले से पहले प्री फैच कर रहा होगा, और आगे अगर उसको पता चले कि जगह नहीं है, तो वो डिफरेंट लोकेशंस पे एलोकेशन करना शुरू कर देगा, लाइक हार्ड डिस्क एंड अदर स्टोरेज इक्विपमेंट्स वी आर हैविंग। ऑलराइट, तो यहाँ पे सब सिंपली वही हो रहा है और कुछ भी नहीं हो रहा। ओके, क्रिएट द मॉडल। अगर हम आपके पास, हमारे पास फॉर एग्जांपल 24 GB का कार्ड होता ना,
या 12 GB का भी कार्ड हो है हमारे पास जैसे ग्राफिक कार्ड, तो हमें इसकी दूर तक ज़रूरत नहीं है कोड की। ये इसकी ज़रूरत है कि अगर आप अपने सिस्टम में परफॉर्म करोगे देन यू ऑफ कोर्स नीड दिस कोड। Now we're gonna do create the model. It's time to create our neural network embedding dimension 16. अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। किस तरीके से समझाऊँ उसको ज़रा मैं लेट मी ट्राई टू टेक एन एग्जांपल। जिस तरीके से हम अपनी इमेजेस को फ्लैटन कर रहे होते हैं ना, हम यहाँ पे यूज़ करते हैं फ्लैट रीशेपिंग कर रहे होते हैं, इसी तरीके से हम अपने टेक्स्ट डेटा को भी फ्लैटन कर रहे होते हैं। ठीक है, उसको हम बोलते हैं एम्बेडिंग डायमेंशन। वी आर हैविंग स्टिल लॉट ऑफ थिंग्स टू परफॉर्म एंड वी आर वेरी लो ऑन टाइम। तो यहाँ पे हम एम्बेडिंग में क्या कर रहे हैं, बेसिकली टेक्स्ट को फ्लैट कर रहे हैं। एम्बेडिंग का काम बिल्कुल सिर्फ यही है, और हमें डायमेंशन दे दी 16, मतलब 16 डायमेंशन दे दिए हैं। मतलब एट अ टाइम अब 32 को इन्होंने 2 से डिवाइड करा है, तो 16 इन्होंने खुद से सपोज कर लिया। आप चाहते तो 32 भी कर सकते थे, इट्स ऑल ऑन टू यू, एक ही बात है, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। सो हमने डायमेंशन दे दिया अपने 16, तो अब वी हैव टू मेक श्योर कि हमारे पास जो भी डाटा आ रहा होगा वो हमारे पास 16 डायमेंशंस में ही कन्वर्ट हो जाएगा, चाहे जितने भी हमारे पास फीचर्स आ रहे हो। सो मॉडल इज इक्वल टू टी एफ जो सिक्वेंशियल। अब यहाँ पे हमने दिया लेयर्स डॉट एम्बेडिंग मैक्स फीचर प्लस 1। अब यहाँ क्या हो रहा है हमारे पास कि जितने भी हमारे मैक्स फीचर आ रहे हैं, क्योंकि वो जीरो से इंडेक्स होते हैं, हमारा हमने उसको +1 कर दिया और हमने यहाँ पे अपनी एम्बेडिंग डायमेंशन डाल दी, उसकी वो डायमेंशंस को क्या कर देगा, कम कर देगा। हमारे पास लाइक इफ यू आर हैविंग 20,000 डायमेंशंस, तो वो हमारे पास जो डायमेंशंस होगी वो कम हो जाएंगी। अब यहाँ पे हमने पहले से बता रखा है कि हमारे पास मैक्स फीचर्स कितने आ सकते हैं, 10,000 फीचर्स आ सकते हैं, और उसकी डायमेंशन कम करके किस में हो जाएगी, 16 में हो जाएगी। ये क्यों कर रहे हैं हम बेसिकली इट्स अ काइंड ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। अगर 10,000 फीचर से डील करने लग जाएगा हमारा मॉडल, सो इट गोइंग टू टेक डजन ऑफ टाइम। ठीक है ना, दैट इज वाई वी आर रिड्यूसिंग अ डायमेंशन टू 16। कहाँ 10,000 तक, कहाँ हम 16 पे ले आए। then layers were drop out 0.2, all right, and what we are doing here। अब जरा अगर हम इसको थोड़ा सा यहाँ समझें इस डिटेल के साथ, तो हमारे पास टोटल इतने जो थे ना, यहाँ पे इन्होंने मेंशन नहीं करा, ये बहुत गलत बात है ये मॉडल बता नहीं रहा हमको, लेकिन हम जो शेप देख लेते हैं, शेप क्या है हमारे पास। ठीक है, हमने जो शेप कन्वर्ट करी है किस में कन्वर्ट करी है, 16 में कन्वर्ट करी है। हमारी इनपुट शेप 16 बनेगी, इनपुट शेप भी 16 होगी तो आउटपुट भी 16 ही जा रही है ऑफ कोर्स, जो भी हमारी शेप होगी। अब इस लेयर के पास भी 16 ही आनी चाहिए, लेकिन ये बता नहीं रहा। ठीक है, अब आउटपुट ही 16 दे रहा है, फिर ये आउटपुट 16 दे रहा है, 16 1। अब हो क्या रहा है बेसिकली यहाँ पे, इसकी अगर हम डॉक्यूमेंटेशन में देखें तो मैं आपको थोड़ा समझाऊंगा वहाँ से जाके कि ड्रॉप आउट क्या कर रहा है और हम किस तरीके से उसको यूज़ कर रहे हैं अपने इस कोड के अंदर। लेट मी जस्ट मूव ऑन टू डॉक्यूमेंटेशंस। अच्छा, आप लोगों को बहुत सारी कन्फ्यूजन होती हैं और आप लोग पूछ रहे होते हो, और वो सारी डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल होती हैं, सो प्लीज़ गो टूवर्ड्स दैट। यहाँ पे विजुअलाइजेशन ही नहीं दिखाई भी इन्होंने, जैसे मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझा लेता। अब बेसिकली ड्रॉप आउट बेसिकली क्या होता है, ड्रॉप आउट बेसिकली हम लोग रीशेपिंग कर रहे होते हैं, जो डाटा के अंदर नॉइज होती है ना हमारे पास, हम उसको रिमूव कर रहे होते हैं, लेकिन फिर यहाँ पे उन्होंने वो विजुअलाइजेशन जो चाहिए थी वो नहीं दिखाई। दैट्स वेरी सिक ऑफ दोस गाइस। राइट, यहाँ पे लिखा हुआ है ड्रॉप आउट लेयर randomly sets input to 0 with the frequency of rate, all right, which helps prevent overfitting। Inputs not set to 0 are scaled up by 1 divided by 1 minus rate। तो ये वही है, हम अपने डेटा को नॉर्मलाइज कर रहे हैं, बट दे मस्ट हैव मेंशन द एक्चुअल व्यू, जिससे मैं आपको और अच्छे से समझा सकता। लेकिन अभी के लिए फिर आप यही समझ लो कि यहाँ पे हम लोग अपने डाटा को 0 1 के दरमियान नॉर्मलाइज कर रहे हैं। इसके बारे में मैं आपको मजीद तभी समझाऊंगा जब हम लोग नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग पे काम करेंगे। अब हम लोग नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में काम नहीं कर रहे, क्योंकि इसको समझाने से पहले आपको एम्बेडिंग डायमेंशन अच्छे से समझाना चाहिए, जो कि पूरी की पूरी 2 घंटे की क्लास है, एंड आई कैन नॉट अफोर्ड दैट एक्सप्लेनेशन राइट नाउ। We simply building a neural network, and after building a neural network we are mentioning the summary of our model। 4 layers है हमारे पास, और उन 4 लेयर के अंदर we are having some things here। total trainable parameters हमारे पास कितने हो रहे हैं, 160,033। all right, so the layers stack sequentially to build the classifier। the first layer is an embedding layer। this layer takes the integer encoded reviews, looks up and embedding। हमें पता है हम यहाँ पे बेसिकली डायमेंशंस कम कर रहे हैं। सो ओके, राइट, राइट, द नेक्स्ट अ ग्लोबल एवरेज पॉलिंग 1D लेयर रिटर्न्स द फिक्स लेंथ आउटपुट लेयर। जो हमें मालूम करना था वो हमें बता नहीं रहे, बाकी सब चीज़ें बता रहा है। ओके, तो भाई यहाँ पे हमने मॉडल बना दिया है, और आसान अल्फाजों में यही बता सकता हूँ मैं आप लोगों को
यहाँ पे हम लोग अपने डेटा को नॉर्मलाइज कर रहे हैं एक तरीके से, दिस काइंड ऑफ नॉर्मलाइजेशन टेक्निक, एंड दिस इज अ ग्लोबल एवरेज पूलिंग 2D। ये भी थोड़ा एडवांस 1D, दिस इज एन एडवांस कंसेप्ट। ये कंसेप्ट जो है उसका है रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क का, जो कि अभी हमने पढ़ा नहीं है। दैट इज व्हाई यू कैन नॉट अंडरस्टैंड एवरीथिंग राइट नाउ, बट जस्ट गो विद द फ्लो। यहाँ पे पढ़ लेना, थोड़ा समझ में आ जाए कि सीक्वेंस डायमेंशन के साथ किस तरीके से वो एवरेजिंग कर रहा है बाय सैम्पलिंग इट, सो यू कैन नो दी सम सॉर्ट ऑफ थिंग्स हियर। ना लॉस फंक्शन एंड ऑप्टिमाइजर, यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है। यहाँ पे सिंपल सिंपल हमने लॉस मेंशन कर दिया, और लॉसेस डॉट बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी फ्रॉम लॉजिट्स इज इक्वल टू ट्रू। हमने यहाँ पे अपना लॉस फंक्शन मेंशन कर दिया है। देन वी हैव मेंशन हियर ऑप्टिमाइजर इज इक्वल टू एडम। हमारा एडम कौन सा है? एडम क्लासिफायर। अब लॉस यहाँ पे कैसे मालूम हो रहा है? ये टेंसरफ्लो का अपना फंक्शन है, ठीक है। और आपको मैंने बताया कि आप खुद भी मालूम कर सकते हो दैट विच फंक्शन इज यूज फॉर व्हाट प्रोसेस। अगर मैं यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे सिंपल यहाँ लिख दूंगा, सो ये बेसिकली क्रॉस एंट्रोपी डेवलप कर रहा होता है बाय यूजिंग बाइनरी क्लासिफिकेशन। तो क्या कर रहा होगा ये 0 1 के उसमें ही जनरेट कर रहा होगा, क्रॉस एंट्रोपी डेवलप कर रहा होगा कि अगर हमने याद है कंफ्यूजन मैट्रिक्स डेवलप किया था, तो ये काम वो लॉस फंक्शन खुद ही कर रहा होता है। तो यहाँ पे हम बेसिकली वही काम हो रहा है, तो उसको एज हम लॉस फंक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं इधर। देन वी आर यूजिंग आरएम क्लासिफायर, सॉरी आरएम ऑप्टिमाइजर एज एन ऑप्टिमाइजर राइट नाउ। and then we have mentioned a metrics like binary accuracy. Binary accuracy threshold 0.0 दे दिया हमने। Why we have mentioned this as, क्योंकि हमारे पास 2 क्लासेस हैं 0 और 1, और हमने ऐसे पर्पस के लिए फिर हम लोग बाइनरी एक्यूरेसी यूज करते हैं बिकॉज दैट्स मच बेटर देन दी अदर सिनेरियोस, ठीक है हमारे पास, इसलिए हमने बाइनरी एक्यूरेसी मेंशन कर दी। ट्रेन द मॉडल, you will train the model by passing the dataset object to the fit method। अब हम लोगों ने मॉडल बना दिया, हमें सब मॉडल डॉट फिट करना है। किस तरीके से करेंगे? हमने epochs मेंशन कर दिए 10, और यहाँ में लिख दिया हिस्ट्री इज इक्वल टू मॉडल डॉट फिट। अब हमने यहाँ पे ट्रेन डेटासेट डाल दिया, अपना वैलिडेशन सेट हमने यहाँ पर डाल दिया है, ये सब वैलिडेशन कर रहा होगा, और कितने epochs चलाए हैं इसको हमने यहाँ पे epochs भी मेंशन कर दिए। यहाँ पे ऊपर हुआ है, एक ही बात आप यहाँ कर दो, ऊपर कर दो, 10 epochs यहाँ पे हमारे पास मेंशन होंगे। लेट मी जस्ट what I want to do right now, हमने काफ़ी देर से कोड रन नहीं करा। लेट मी सी फ्रॉम वेयर वी हैवंट रन द कोड। तो उसको रन करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हमारा मॉडल रियल टाइम में ट्रेन ही नहीं हो सकेगा। डू वी हैव रन दिस? ऑलराइट, तो अब यहाँ से थोड़ा मैं रन कर रहा हूँ इतने इतने। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझे बता दो। ऑलराइट, साथ साथ मुझे जहन में नहीं रहता कि उनको रन करता चला जाऊँ, क्योंकि आउटपुट ऑलरेडी जनरेट हुआ हुआ होता है तो मुझे याद नहीं रहता। तो यहाँ पे हमारे पास मॉडल बन चुका है, ठीक है। यहाँ पे मॉडल कंपाइल हो रहा है हमारे पास, और जैसे मॉडल कंपाइल हो जाएगा, मॉडल कंपाइल हो गया है। नाउ व्हाट वी गोना डू, वी गोना ट्रेन आवर मॉडल। अब ये थोड़ा टाइम लेगा, ठीक है, ये लेगा एक 2 मिनट तो लेगा कम से कम। ये एक ही पोक हो गया हमारा, सो टिल दैट जस्ट वेट फॉर इट। Right. Someone has said that today's workshop is really tough. Yes, I have already warned you guys कि भाई be mentally prepared। अब आसान दिन खत्म हो गए, अब मस्तियों के दिन खत्म हो गए हमारे पास। We are having some harsh days to be an inventor right now। And don't worry for the freelancing class, we soon gonna have that freelancing class which gonna tell you how to earn using these skills। अभी तो हमारी skills इतनी अच्छी नहीं हुई है कि you can earn so easily। If you put some 1 month more in AI, then you will be able to your starting earning will be from like $500 to $700 easily अगर आप हर हफ्ते कोई प्रोजेक्ट उठा रहे हो। So your starting earning will be $500 to $700 in AI। ये स्टार्टिंग है, दिस इज द स्टार्टिंग। खे नाउ व्हाट वी गोना डू, हमारा मॉडल हो गया इवेल्युएट। हम जरा चेक कर लेते हैं यहाँ पे हमारे पास एक्यूरेसी क्या बता रहा है ये। तो भाई बाइनरी एक्यूरेसी मेथड हमें बता रहा है कि हमारा लास्ट मॉडल जो आफ्टर ऑल इपॉक्स इतना एक्यूरेट है, बस 87%। ऑल राइट, ये हमारी ट्रेनिंग एक्यूरेसी थी। नाउ वी गोना सी अ टेस्ट एक्यूरेसी। हाउ वी गोना सी इट, वी गोना इवेल्युएट अवर मॉडल। लेट्स सी हाउ द मॉडल परफॉर्म। 2 वैल्यूज विल बी रिटर्न, लॉस एंड एक्यूरेसी। ऑल राइट, हमने यहाँ मॉडल इवेल्युएट डाल दिया और यहाँ पे मैंने डाल दिया टेस्ट अंडरस्कोर ds। या तो लास्ट टाइम हम लोग कंफ्यूजन मैट्रिक्स बिल्ड कर रहे होते थे बाय एंटरिंग अ टेक्स्ट मैट्रिक्स। यहाँ पे बना बना मॉडल डॉट इवेल्युएट, और यहाँ पे हम लोग अपना पूरा का पूरा टेस्ट सेट मेंशन कर देते हैं एंड जस्ट इट इवेल्युएट द एक्यूरेसी ऑफ अवर मॉडल।
एक्यूरेसी हमारी बहुत पुअर बनेगी, आई प्रीटी श्योर अबाउट इट, क्योंकि हमने उसमें बहुत सारे फैक्टर्स अभी यूज नहीं किए हैं. द रीजन बिहाइंड वी हैवंट यूज्ड दोस फैक्टर्स बिकॉज दैट इज वेरी टू टफ, वेरी टू टफ. तो अभी हमारी एक्यूरेसी बन रही है 0.87. इट्स गुड और यू कैन से नॉट गुड, आपकी मर्जी है. द फेयरली नाइव अप्रोच अचीव्स एन एक्यूरेसी ऑफ 86%. इस सेंटेंस का मतलब समझ में आया यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं हम यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं दिस फेयरली नाइव अप्रोच का मतलब कि एक भोली भाली अप्रोच, एक नादान अप्रोच, एक बच्चों वाली अप्रोच ने भी एक अच्छी खासी एक्यूरेसी जो है 86% हमें यहाँ पे अचीव कर ली है. If we were using recurrent neural network here, 99% पक्का था एक्यूरेसी. डेटा सेट हमारा इतना क्लीन हमने गोना किया है उसको, ठीक हो गया. अच्छा, मशीन लर्निंग के अंदर ये बड़ा फर्क होता है. मशीन लर्निंग के अंदर ना प्री प्रोसेसिंग ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है एज कम्पेयर टू डीप लर्निंग. डीप लर्निंग में प्री प्रोसेसिंग थोड़ी कम रिक्वायर्ड होती है, उसके अपने बहुत सारे अच्छे अच्छे फंक्शंस बने हुए हैं फ्लैटनिंग के एंड दोज सो मेनी थिंग्स. तो मशीन लर्निंग के अंदर सब काम आपको मैनुअली करना पड़ा होता है एंड दैट्स अ हेक्टिक. यू विल सी जब आप लोग डीप लर्निंग में जाओगे तो डीप लर्निंग में सब न्यूरल नेटवर्क बनाना आर्ट रह जाएगा. आपको अगर डेटा तो सारा ही खुद कर रहा है साफ इन वेरी कमिंग डेज. Now what we're gonna do, we're gonna create a plot of accuracy and loss over time. So yeah, that's a good thing to do. हमारा मॉडल ट्रेन हो चुका है, तो अब हम ज़रा यहाँ पे बट इज डूइंग अच्छा, यहाँ पे हम लोगों ने डिक्शनरी बनाई है. history को हमने असाइन किया. हिस्ट्री डिक के अंदर हमारे पास एक यू कैन से डिक्शनरी आ गई. क्या आ गया आई डोंट नो. राइट, तो डिक्शनरी आ गई है, लेकिन उन्होंने यहाँ पे प्रिंट नहीं करी वो डिक्शनरी. हम चाहें तो वो डिक्शनरी अलग से देख सकते हैं कि वो डिक्शनरी कैसी है. लेट अस सी. ओह, बड़ी खतरनाक डिक्शनरी है. तो ठीक है, तो हमारे पास ये वैल्यूज और ओवर टाइम हमारे पास वैल्यूज आ रही थी. हमने उनकी कीज मालूम कर ली हैं. लॉस, बाइनरी एक्यूरेसी, वैल्यू लॉस, वैल्यू बाइनरी एक्यूरेसी. अब हम करेंगे उसको प्लॉट. प्लॉटिंग इज बिट टफ, बट हु कैन होल्ड अस बिफोर डूइंग टफ थिंग्स. तो यहाँ पे हमने ले लिया क्या, हिस्ट्री अंडरस्कोर डिक्ट. हमने सारी बाइनरी एक्यूरेसी अपने इसमें डाल दिए. हमने सारी वैल्यू बाइनरी एक्यूरेसी हमने इसमें डाल दी है वैल्यू एक्यूरेसी के अंदर. हमें लॉस वैल्यू सारी हमने इसमें डाल दी हैं, और वैल्यू लॉस हमने सारी वैल्यू लॉस में डाल दी हैं. देन हमने ईपॉक क्या रखा है, रेंज 1 इज इक्वल टू लेंथ अकाउंट प्लस 1. हमारी ईपॉक्स क्या होंगे, या आइट्रेशन, नंबर ऑफ आइट्रेशन कितनी होंगी, जितनी हमारे पास टोटल लेंथ है उस पर हम प्लस 1 कर देंगे. 1 से लेके वो एंड तक चलेगा फिर. All right, so BO is for blue dot, B is for solid blue line. सब ओके, ये चीज़ मुझे नहीं पता चली है, मुझे भी नहीं पता थी टू बी वेरी ऑनेस्ट. सो PLT डॉट प्लॉट इपॉक्स लॉस. यहाँ पे हमें लॉस प्लॉट कर रहे हैं, इपॉक्स लॉस प्लॉट कर रहे हैं ओवर द टाइम, ठीक है. और यहाँ पे हमने BO डाल दिए. BO इज रिप्रेजेंटिंग ब्लू डॉट्स. लेवल क्या होगा इसका, ट्रेनिंग लॉस. देन B इज फॉर सॉलिड लाइन, जो ब्लू यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, वैलिडेशन लॉस. लेवल क्या है इसका, वैलिडेशन लॉस और ओवर द टाइम. तो जब हम उसको लेजेंडरी करने के बाद शो करेंगे, ओके दैट्स अ गुड वन. तो यहाँ पे हमारे पास जो डॉट्स हैं वो लॉस है, और जो बार है वो हमारी वैलिडेशन लॉस है. तो वी आर सीइंग द ह्यूज डिफरेंस बिटवीन दिस. इट्स नॉट परफेक्टली फिटेड टू दिस लॉस, बट नो वरीज. ऑलराइट, प्लॉट डॉट PLT डॉट प्लॉट एंड इपॉक्स हमें डाल दी यहाँ पे. अब हम लोग एक्यूरेसी को प्लॉट करेंगे अगेंस्ट वैलिडेशन एक्यूरेसी. और ये हम देख सकते हैं कि हमारी ट्रेनिंग एक्यूरेसी बहुत अच्छी जा रही थी, लेकिन वैलिडेशन एक्यूरेसी इन रियलिटी इतनी अच्छी नहीं हुई. ये पुराना प्लॉट है, वी शुड रन दिस अगेन. हाँ, ये थोड़ा सा अच्छा हुआ है. पहले इतना अच्छा ट्रेन नहीं हुआ था जितना अच्छा ट्रेन हुआ है. हाँ, तो यही है डिफरेंस हमारे पास अभी भी आ रहा है. ये 86% पे रुक गया, लेकिन 90% पे तक जाना चाहिए था उसको. जाना क्या चाहिए था, मतलब ये डिफरेंस है जो बता रहा है कि ट्रेनिंग इतनी एक्यूरेसी में बता रहा था, जो कि एक ओवरफिटिंग का एक होता है, मगर बहुत कम ओवरफिटिंग का रेशियो हमारे पास यहाँ पे. सो यही हो गया, हमने अपने इसको मॉडल को देख लिया है. नाउ यू कैन यूज दिस मॉडल एज वेल. आप किसी भी वेबसाइट पे चाहो यूज कर सकते हो. तो इन्होंने तरीका बताया हुआ होता है, लेकिन ये नहीं बताया कि डिप्लॉय कैसे करते हैं. तो डिप्लॉयमेंट इज द रियल थिंग. एक्सपोर्ट करना इतना मुश्किल काम नहीं होता. एक्सपोर्ट कैसे करते हो, आपके tf.class.sequential डालोगे, वेक्टराइज लेयर डालोगे. वेक्टराइज लेयर से क्या होगा, आपका डाटा जो आ रहा होगा उसके ऊपर वेक्टराइजेशन परफॉर्म हो रही होगी, ठीक है. तो ये सारी प्री प्रोसेसिंग, उसको आपके पास प्रेडिक्शन के वक्त ही प्री प्रोसेसिंग परफॉर्म होनी चाहिए ना. तो उसके बाद प्री प्रोसेसिंग परफॉर्म होगी, उस पर आपने मॉडल डाल दिया, मॉडल पूरा का पूरा आ गया,
और layers dot activation sigmoid आपने उन पे sigmoid activation function अप्लाई कर दिया. देन यू हैव मेंशन कि भाई मेरा ये ऑप्टिमाइजर होगा, ये एक्यूरेसी होगी और ये मेरा लॉस है जो भी है, ऊपर से उठाया इन्होंने. अब बस हम क्या कर रहे हैं, हम लोग अपने मॉडल को बना रहे हैं टू यूज इट लेटर. ठीक है, ये इतना खास ये लोग नहीं बनाते. मैं आपको बाद में बताऊंगा कि मॉडल बनता है कैसे है, किस तरीके से मॉडल बनता है. सो नाउ दे आर सेइंग कि इन्फ्रेंस ऑन न्यू डाटा. अब वो डाटा जो पहले कभी था ही नहीं. टू गेट प्रेडिक्शंस फॉर न्यू एग्जांपल्स यू कैन सिंपली कॉल मॉडल डॉट प्रिडिक्ट. लेट मी जस्ट सिंपली रन दिस. ये एग्जांपल थी हमारे पास, द मूवी वाज ग्रेट, द मूवी वाज ओके, द मूवी वाज टेरेबल. ये मैंने एग्जांपल डाली और इस पर रन कर दिया तो ये कुछ वैल्यूज लेके आ गया. अब इस वैल्यूज को हम क्या करेंगे? ये नहीं बताया कि इस वैल्यूज को हम कन्वर्ट कैसे करेंगे या प्रिडिक्शन. अच्छा ये प्रिडिक्शन दे रहा है ना हमको. ऑलराइट, तो ये इसको ये हमें प्रिडिक्शन दे रहा है 61%, 43%, 35%. मतलब ये हमें प्रोबेबिलिटी बेस्ड प्रिडिक्शन दे रहा है कि कौन सा कमेंट कितना अच्छा है. रेटिंग बेस्ड हमारे पास ये चीज़ें आ रही हैं. तो ये है, ये कुछ चीज़ें आप लोग पढ़ लीजिएगा जीपीयू या सीपीयू प्रोसेसिंग के बारे में, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ. ये सारा मैंने यहाँ लिखा हुआ है, पढ़ते रहेगा. आज का आपका होम एक्सरसाइज ये है टू बिल्ड अ प्रोजेक्ट ऑन अ मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन और स्टैक ओवरफ्लो क्वेश्चंस. आज के दिन आप लोगों ने पूरा सर्फ करना है, कल की पूरी सुबह सर्फ करनी है. आई विल ट्राई टू कीप अ सिंपल टास्क टुमारो. अगर दिल नहीं किया तो हार्ड रख दूंगा दोबारा. तो लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग स्टैक ओवरफ्लो के ऊपर ये काम परफॉर्म करें. स्टैक ओवरफ्लो का डेटा सेट आपको यहाँ से मिल जाएगा. सिंपली यहाँ पे क्लिक करोगे तो अभी तक आया नहीं आ रहा तो उसको कॉपी कर लेते हैं. Copy link address, and what we're gonna do here, we will switch to this and run. ये देखो ना, अब ये तो सब 5.8 MB का डेटा था इत्तेफाक से. तो स्टैक ओवरफ्लो के ऊपर आप ये ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, किस तरीके से काम कर रहे हैं, क्या हो रहा है. देख लीजिएगा, सारा मैंने यहाँ लिख दिया है. एंड एवरी डिटेल, क्या किस तरीके से परफॉर्म करोगे आप, क्या करना है, क्या करना है, पूरी गाइड्स मेंशन कर दी है मैंने आपको. अगर आपको मेरी वर्कशॉप समझ में नहीं आई इनके टेक्स्ट क्लासिफिकेशन में, तो यहाँ पे ये भी आप पूरे हैंडआउट्स मिल जाएंगे आपको फॉर रिवाइजिंग. ठीक है, वीडियो विल गोना अपलोड अराउंड 12 AM to 1 AM. ठीक है, आई हैव नाउ होल्डेड अ स्ट्रिक्ट एक्शन टुवर्ड्स माय टीम कि भाई वीडियो फौरन अपलोड हो. इट विल बट स्टिल टेक टाइम 3 to 4 hours. तब तक आप यहाँ से भी पढ़ सकते हो. देयर आर सो मेनी थिंग्स. यहाँ पे डिप्लॉयमेंट भी लिखी हुई है, अगर आपको डिप्लॉयमेंट पढ़नी हो ना, वैसे लिखी नहीं होनी नहीं चाहिए लेकिन यहाँ पे लिखी हुई है. उसके अंदर मजीद उन्होंने दे दिया कि हमारे पढ़ लिएगा डिस्ट्रीब्यूशन. तो ये सारी की सारी चीज़ें हमारे पास इस नोटबुक में मौजूद हैं. यू कैन सी इट, यू कैन एक्सेस इट. नाउ इज देयर एनी क्वेश्चन यू गाइस, सो यू कैन आस्क मी राइट अवे और बिफोर वी लीव. ऑलराइट गाइस, एनी क्वेश्चंस, एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन? यहाँ मैंने पूरी डिटेल्स लिखी हुई हैं. ऐसी एक नोटबुक और डेवलप कीजिएगा एंड इट गोइंग टू बी वेरी अमेजिंग फॉर यू गाइस. गोइंग टू बी वेरी अमेजिंग. बहुत मजा आएगा उसके अंदर. स्टैक और फ्लो के ऊपर मतलब वाकई आपको बहुत मजा आने वाला है कि आप जब प्रोजेक्ट बनाओगे खुद से, जो पहले कभी बना हुआ ही नहीं था, तो ये पहले ये परफॉर्म कीजिएगा. ऐसा ना ये परफॉर्म किए बगैर ही उस पर चले जाएं, तो मज़ा नहीं आएगा. फिर ये परफॉर्म कीजिएगा, उसको मजीद समझिएगा, नेट पर सर्च करके एक एक वर्ड क्या मतलब. देन डू इट ऑन स्टैक और फ्लो एंड अपलोड अ डिफरेंट वन ऑन गिटअप. स्टैक और फ्लो पे अपना बना के गिटअप पे आप डाल सकते हो. ठीक है, सेम कॉपी पेस्ट मत कीजिएगा, बस डिफरेंट बना के गिटअप पे डालो. एटलीस्ट यू गिटअप विल हैव सम रेपुटेशन देयर कि आपने एक प्रोजेक्ट डेवलप किया है. दैट इज इंटायरली एन प्रोजेक्ट, स्टैक और फ्लो वाला. ऑलराइट गाइस, एनी क्वेश्चन? आई विल जस्ट वेट 1 minute और मोर अलोंग. 9:30 पे हमें एंड होना होता है उससे पहले, और 9:30 हो गए हैं. कल इंशाल्लाह हम या तो इमेज क्लासिफिकेशन दोबारा पढ़ लेंगे नाउ विद सम कस्टम, या फिर देखते हैं, दिल कर रहा है कि ओपन सी बढ़ा दूं 1-2 दिन. ये देखते हैं हम क्या पढ़ते हैं एंड आई विल सी दैट कि कुछ इंटरेक्टिव पढ़ाऊँ. बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं पढ़ाऊँगा, इंटरेक्टिव पढ़ाऊँगा एंड यू विल लव इट इंशाल्लाह. Alright guys, any question? No, exceptionally we are not having any sort of question here. So alright, so guys, if you are not having any questions, so it means you have understood everything pretty well. And if you are, और या तो ये हो सकती है आप इसके सब समझ में आ गया या फिर कुछ समझ में नहीं आया. So please watch this video again and try to learn it at home and make a good project. At the end, I'm gonna pick some students for featuring at Google Stories. So maybe some 10 only.
So I will needing some special students at the end. So be the one. All right. Allah Hafiz. Bye bye.